भगवान पादी जी, आपको नमस्कार। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको हमारी आवाज आ रही है? यस मैम, नमस्कार। आवाज आ रहा है मेरे पास ठीक से। जी, तो आपको हमने को होस्ट बना दिया है। ओके मैम। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कुछ आप यूज करेंगे, उसके लिए हमने आपको को होस्ट बना दिया है। राइट मैम, राइट। Okay, the volume here is too. So are you, sir, can we, are you ready to start? Can we start the session, sir? यस मैम, आई एम रेडी। Okay, all right, sir, thank you. So good afternoon, everyone. And our today's speaker is somebody who has a very long experience in training professionals, in training bureaucrats, training people, public servants who are serving the government. He is Mr. Bhagwan Padi. He is been associated with the Department of Personnel and Training and currently serving there as a deputy director. And as I just mentioned, because obviously DOPT looks after the training of the bureaucrats and other government officials. So he's somebody who has a very wide experience in this field. So today he is going to talk about the manual of office procedure. This is what he's going to talk about. And sir, we were just joking here that maybe we could have perhaps, if you were a political scientist, we could have asked you to analyze the election results for us. But because everyone here is obviously watching their screens in rapt attention as to what is happening in terms of the results. But anyway, that is for some other session. So today, for both the sessions, we are going to have sir with us. And the first one, this one is on the manual of office procedure, and the next one would be on noting and drafting. So, sir, now the over to you. Thank you ma'am, thank you very much for this elaborate introduction of me. Namaste to everybody who are present here. I think my voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, very good. Microphone. Myself, Bhagavan Padi. Presently, I am working in ISTM, but in the payroll of DOPT, Department of Personnel Training, as a Under Secretary, and presently posted in ISTM as a Deputy Director, as a faculty since 2016. I am here. In Government of India, I am working since 8/11/1993. Demonetization day, of course, it was not there during that time. 8th November 1993. Since a long period, I am in DOPT. Mostly 1 year I was out of DOPT. Had gone to Science and Technology as a section officer establishment. Again, DOPT called me back. Your service is required. Then I got a call from PMO, but ISTM called me in advance. So I joined ISTM and continuing there. So it is going on like this. And as far as Madam told, regarding election and little analysis on that, I am a science postgraduate, MSc in chemistry and MBA in HR. Of course, I will throw little light on this election. See, as far as government of India employees are concerned, as far as we all are concerned, as for conduct rule number 5, we cannot go deeply into the election things. We can little bit know the result, who won, who lost. That you easily got from the TV news, mobile news here Sir, and yes, there. I was just joking, sir. Yeah. A little bit I am throwing the light so that it will not create any problem for anybody else in future. And the rule 5 of the conduct rule tells that we should be politically neutral. We should politically neutral, 100% we should be neutral, not little bit here and there. We cannot be biased little bit also. And we can vote to any political party. Election duty can be assigned to us. We can do that also. But we should be politically neutral. Well, you can ask me, sir, ghar mein, what about house? In the house also, we should be political neutral.
suppose my Really? spouse, Sir, yeah, ऐसा थोड़ी होता है सर. I'm घर पे- telling ma'am, I'm telling, listen, a little bit, then you will tell. Okay. What happened, घर में suppose I will support my BJP, my wife will support Congress, we both will fight, then we will come out to the streets. बाहर हमने फिर पकड़ लेंगे कि you should be political neutral. घर में हम क्या करते हैं, what we are doing in the house, that is a different matter, but वो जो हमारा rule tells, we should be 100% politically neutral. That is one thing. And the other thing is rule 9 tells that rule 9 of the conduct rule. Of course, the session is not on that, but little I am taking time. Rule 9 tells that we should not criticize any government. Any government. It may be BJP in the center, Aam Aadmi Party in the Delhi, because if we will criticize government in any form, there will be any ladai jhagda ya any fighting between central government, state government, central government, foreign government, India, Pakistan. Suppose we given an article in the newspaper, it should be politically neutral also. Suppose due to that article, the two governments will fight, then it is a problem. So this is one related to election, rule 5 and rule 9. And these two we have to keep in mind. Of course, as a friendly gesture, we are discussing in the office, ghar mein, idhar, udhar, everywhere we are talking about political things. So many things are there. Few people are biased towards some parties, like that. Everybody is affiliated to, not affiliated to. We are inclined to give vote to a particular political party. सारे का इसमें difference रहेगा. I may choose some party, you may choose some party, like that. But whatever may be the present result, we can say it like this. Mostly the work-based things they given the people in UP, Uttarakhand, and Goa, all depending upon the performance of the government, they given the vote. Manipur also, they are looking after the government works towards Manipur. But the Punjab election, we cannot predict there, because the people of Punjab, what I feel, Punjabi people, they give that क्या बोलते हैं गुरुद्वारा में जो देते हैं, they give the food to the people all over the world. लंगर सर. या लंगर, तो फ्री का चक्कर में खुद इधर उधर वोट दे रहे. समथिंग लाइक इट इज समथिंग बायस. सर ये तो आपने तो सर ये अनबायस्ड कमेंट तो नहीं हुआ सर, ये तो बायस्ड कमेंट हो गया सर. little bit I am actually I am against free culture, not to the ladies, the boss and metro भी पता नहीं पर नहीं होगा. फ्री ये सारे होना नहीं चाहिए. But you can give vote to any party which is not on this free culture. Free culture में कोई भी बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी है, तो वोट देना नहीं चाहिए. That is one of my view. Because गरीब को देखते हुए देना चाहिए, not religion, not caste, वो सारे होना नहीं चाहिए. So these are some of the things what happened in the today election. नाना करते हुए आपने एनालिसिस दे दिया है पूरा वैसे ही. Little ma'am, little I talked about this. Sir, can I mention just one thing? You said that as public servants or as say people, government officials, this is part of your, you said is it part of the manual of procedure that section 9 and 5? Yes, yeah, ma'am, this is a conduct rule, complete conduct rule I am talking about. These are the two related to political areas, rule 5 and rule 9. So does it also apply to, for example, teachers in the university? Everybody, all government employees, even though the PSU employees, autonomous body, all are, little deviation is there in some areas, but it is applicable to all government employees. सारे government employee को ये apply है. So some of them may be from South India. So I think I am speaking less Hindi. Because South India से भी होंगे तो they cannot understand. Yes, sir. There are people. So actually, when it is also like this, when I speak Hindi, I speak speedily. Basically, I am Odia and I am here in Delhi since 28 years. So language Odia and Hindi is the same almost. There is no difference, and so I can speak speedily. I know Telugu also, but here I cannot speak the Telugu Odia. I have to concentrate only on English and a little Hindi also. So North Indians are generally. you are most
Language wise. Language wise? North Indians are little ignorant, sir, in comparison to people in the South and Orissa. Yeah, yeah. I'm saying that as a North Indian, of course. No offense for North Indians. Yeah, yeah. So, anything anybody can talk, then we will come to our subject. We will discuss on that. Elaborately, we will talk. You can ask me any question. I have no hesitation. Any type of question you can ask me. I will discuss, I will talk. Just 1 minute. You are getting my voice? आवाज आ रहा है मेरा? सर नहीं, आपकी आवाज सर बहुत धीमी हो गई है. We can not hear you properly. Very feeble, sir. Now you are getting? It's slightly better, but not as good as it was earlier. No, sir, we can't hear you now. Just 1 now. No, sir, I think without headphone, it was very clear. Okay. Remember that. I hope now it is completely okay. Are getting now? Yes, sir. Yeah. Okay, I will not use headphone. I am comfortable here also. You are getting me now fully without any break in the voice या anything else. Fully आवाज आ रहा है ठीक ठाक? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I know the participants who are here? It is from all over India, I hope. Yes, sir. They are from a lot of them are from Delhi University, Yeah. departments and colleges. Also, people from other states are there, sir. Yeah. Okay. So first here we will one session we will concentrate on office procedure, what we are doing in the office में हम क्या करते हैं, on that we will discuss, and then after a break we will go for noting drafting, how we are doing that in the Government of India. So as far as office procedure is concerned, there will be little deviation for you what you are doing, but mostly totality what is there in the Government of India, that I will talk. And anywhere else, any question, any thing you can ask me. Till now I faced 2 difficult question. One deputy commissioner, DCO, some officer, Navodaya Vidyalaya, he asked me whether the dowry system, it is there a part of the conduct rule, whether the dowry system is working in the Government of India. चलता है कि नहीं. मैंने रूल पढ़ा रहा था कि रूल 13A में डाउरी नहीं लेना है करके. Then he was some Meena, he asked me question in the classroom कि whether ये डाउरी सिस्टम चलता है कि नहीं, आप जो पढ़ा रहे हैं. And this was a little tough question for me. So what did you answer, sir? We are interested in the answer. मैंने रूल तो पढ़ा दिया है. I told him the rule. Then after completing the rule, he asked me. Then I asked him whether you are आपका बच्चे को शादी किया, बेटा को शादी किया, बेटी को करना है, like that he told. Then I asked him whether you given dowry. He told that yes, he given the dowry, and for the boy and for the girl, dowry lena dena both hai. Then I told him, if you are giving dowry and taking dowry, then why you are troubling Bhagavan Padi? Okay. That was my reply, because the rule is there and he is not following that. Then he is checking whether Bhagavan Padi what reply will give. So then I told him there was a lady, she was a private secretary in Government of India, Department of Personal Training. She has a single daughter. She married that daughter. After marriage, the divorce petition was filed from both sides. Then they given in writing, these are the dowry they taken, and there was a problem in this government employee. Single daughter hai, marriage kar diya,
after marriage now the problem is dowry. Dowry के बारे में उनका पेंशन रुक गया, ऐसे करके बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ था. So unless there is a complaint, we go it without any problem, and when there is a complaint, we fall into that. So though it is a prohibited, everybody is taking dowry and giving dowry, but it is prohibited. As far as a government of employee, suppose you are taking and giving, that is okay, but you should not fight for more dowry. You should not demand more dowry. And there should not be any ladai jagada या filing of divorce petition this that for dowry. रूल तोड़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके वजह से. That you have to keep in mind. It is a tradition, custom, yeah, whatever may be going on in India, you are telling and you are doing that, do that, but you should not be for that only. Should not fight for that. If something else, that is a problem. It was one of the tough question. Another tough question was scientist D from Chennai. He asked in the classroom, developing positive attitude class. He asked me, Amar रहने के लिए, you want to stay alive without dying? That was a tough question also. These two questions till now I faced that tough question. So, So but any tough, how did it fall under the gamut of manual of procedure? yeah, I will tell that if we are out of से हम लोगों ने बोलते हैं कि रूल तो अपने जगह पे है, हम अपना काम करेंगे. गवर्नमेंट में ऑफिस का रूल लगा हुआ है, हम अपना हिसाब से काम करेंगे. So similarly, this question was the tough question. I will give you the answer towards the end if possible. इसका आंसर क्या है? वो अमर है अभी तक, is alive, he is not dying. These are the two questions. You can answer at the end of the session. I will give this session, yeah, next session. You can ask me. There is answer for this, best answer. सर ये And by अच्छा सर ये अच्छा तरीका है स्टोरी टेलिंग का कि क्लाइमैक्स जो है वो आखिरी में ही आना चाहिए. दैट्स अ गुड वे टू हैव द लेक्चर. Not like that. I am putting the rule in front of you, and after getting the rule, you will tell that कि ये rule तो हम करते नहीं है sir. So rule is there. हम रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं, बट हम डरते नहीं है, कभी कभी चालान देना पड़ता है. रेड लाइट क्रॉस करिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आपको चालान देने के लिए, पेमेंट करने के लिए. सपोज यू आर रेडी टू दैट, बट देयर इज अ रूल टू नॉट टू क्रॉस द रेड लाइट. Similarly, here in the office procedure also, the rule is given to us, the rule is codified for us, and complete rule we can better to follow. If we follow the rule, then it is good, otherwise we will be in trouble. Sometimes problem होता है तो then हमने सबको याद करते हैं, रूल को याद करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भगवान सबको बुलाते हैं, और जब तक हमारा रूल हम तो नहीं करते, आराम से चलते हैं, ऐसे करते हैं. So keeping these things are there, let us concentrate what is the procedure, office procedure. Follow करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा. The three examples I given you, crossing the red light, and अमर रहने के लिए, stay alive without dying life, उसका आंसर नहीं बताया मैंने. And the other one is political neutrality. These three I talked with you. Now let us come to this rural areas. Anywhere by this way, what I am going to tell you, you are free to ask me any question, any awkward question, anything else related to this functioning of the government. उसमें रूल में क्या है, क्या नहीं है, नहीं करने से चलेगा, नहीं चलेगा, everything you can ask me. Okay, so don't hesitate कि मैं कुछ उल्टा सीधा आंसर दूंगा. You are free to ask me. Okay. So let us now come to this office procedure area. What is here? Then we will in between also we will talk if time permits. Let me share the slides. I think you are able to see the slide. No sir. अब आ गया सर. आ गया. Okay, okay. कहीं पे नेट स्लो होगा तो थोड़ा आगे पीछे होगा, but it is there in front of you. Office procedure, manual of office procedure, manual. This manual is a Bible for us, and this manual of office procedure anybody can download from Department of ARPG, Administrative Reforms and Public Grievances website. It is a department under Ministry of Personal Public Grievances and Pensions. You can easily download it. 2019 edition. It is ebook edition is there.
You can download that one, you can keep a copy along with you, otherwise you can click anytime, you can go through that, you can understand. Whatever the things we are doing in the Government of India, even though whatever the work we are doing in the Government of India, all are written here. Beyond this, we are never doing anything else. Even though anything else, throwing the file here and there, noting whatever things we are doing, arranging everything else, even the punctuality, everything else, everything written inside this manual. It is a Bible for us. As for the manual, we work in the Government of India. Without this manual, we do not deviate anything else. deviate करने से क्या चलता है, कभी कभी प्रॉब्लम आता है तो फिर दुख होता है कि अरे ऐसे किया तो प्रॉब्लम हो गया. We should not deviate as far as our conscience is concerned. One small example, a section officer, he written a noting. There on the noting that section officer written, please, this is a real case. This is not any hearsay, not any story. So that section officer written, discussed with the joint secretary. Joint secretary is a senior level officer. Say you know that 10,000 grade pay, something like that. Okay. Discussed, directed by joint secretary, is directed by joint secretary. Then next he written, discussed with the director also. दोनों दो पैराग्राफ में कहीं लिखा है. Two he written on that two paragraphs. That means what that person written in the noting is as directed by joint secretary, as discussed with the director. That person thought that by writing the name of joint secretary and the director, my role is over, they are responsible, any problem. Then that person has been suspended and vigilance called that person. बोला कि we had gone through your noting, हमने देखा, to return there, joint secretary directed you and to discuss it with the director. You have no fault, but whether your conscience permitted to do this, your conscience permitted, ये काम करने के लिए आपका conscience permit किया है. So at that time this person has no answer to give. क्या बस कोई आंसर नहीं है. joint secretary रिटायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, चले गया, IAS, IPS, whatever may be, and the other person, director, retired, transfer, this, that. This person is now facing the music. So this is a problem. कोई बात नहीं, क्या हो गया? Okay, so इसी को लिखना नहीं चाहिए. Listen, please just 1 minute, then you can ask me. Let me complete this. उसमें हम क्या करेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी ने ऐसे बोला है, मैंने लिख दिया. डायरेक्टर ने मुझे ऐसे बोला है, मैं लिख दिया. हमारा कॉन्साइंस क्या बोल रहा है? व्हाट योर कॉन्साइंस टोल्ड? नथिंग. कॉन्साइंस उसका है ही नहीं. अभी जो सस्पेंड हुआ, जॉइंट सेक्रेटरी बचाया नहीं उसको, डायरेक्टर बचाया नहीं है. नौकरी अपने के लिए कर रहा था, डायरेक्टर जॉइंट सेक्रेटरी के लिए नहीं कर रहा. आपको इन योर ऑफिस यू मे बी AR, यू मे बी DR, यू मे बी JR, जॉइंट रजिस्ट्रार, और व्हाटएवर मे बी वर्क विद इन योर एम्बिट. क्या करेगा? सपोज बोले सर चेन ऊपर से नीचे तक है तो क्या कर देगा? ट्रांसफर करेगा, कंप्लेन करेगा, विजिलेंस में देगा. तो इफ यू आर नॉट एट फॉल्ट, व्हाट एनी पर्सन कैन डू? क्या कर देगा? नथिंग कैन डू. बट आपने उसका साथ मिलके तालमेल किया है. बार इन नाउ सूप, आपने आपका नींद खराब करेंगे, प्रॉब्लम होगा. तो नेवर डेविएट फ्रॉम द रूल. रूल इज विथ यू. आपको जो रूल आप लोगों का पास है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ. आपने somebody, किसी को पता है तो मुझे बताएंगे आपका कौन सा रूल दिया है. You are as an assistant registrar, you are as a deputy registrar, joint registrar, you are having something rule with you to work in the Government of India, to work in your university. I hope anybody can reply. आपका पास कुछ है कि रूल? या आपने प्रेसिडेंट को देखते हुए काम कर रहे हैं? Anybody can reply, please. Sir, we are following Swami's handbook actually. Obviously, government rules you are following. Whatever given there, that you are following. Maybe admin matter, maybe establishment matter, maybe anything else, maybe fundamental rule, maybe supplementary rule, anything. Very good, very good, ma'am. जो reply किया है. So we are having a some set rule. उसका हिसाब से हम चलते हैं. तो हमने उसको deviate नहीं करते हैं.
डेविएट करने में मेमो इश्यू करेगा, हमारे से सीनियर है और हमको पूछ सकता है, और सस्पिशियन रहेगा हमारा ऊपर, हम जो भी काम करेंगे इट मे क्रिएट प्रॉब्लम. So as far as office is concerned, you can see in this slide, center is the processing unit. You are at the middle of this yellow color. Everywhere, somewhere else work is coming. उधर फाइल है, उधर कम्युनिकेशन आ रहा है, टेलीफोन आ रहा है, कहीं से चेक कर रहा है, कोई से चिट्ठी के लिए पूछ रहा है, somebody is asking this, that, everywhere. You are getting all the things. So you are at the middle, that oval color, information processing unit. ऑफिस इज नथिंग बट ए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट. ऑफिस में बोलेगा आप क्या करते हो, ऑफिस में हम नोटिंग करते हैं, नोटिंग क्या है उसको पता नहीं है, और ड्राफ्टिंग है दे डोंट नो. ऑफिस में हम क्या करते हैं, काम करते हैं. कौन सा काम करते हो, एनीथिंग यू आर प्रिपेयरिंग इन द ऑफिस, नो, ओनली वन थिंग वी आर डूइंग इन द ऑफिस, वी आर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन. एवरीबॉडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, एवरीबॉडी, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, वेरी यू आर वर्किंग, what you are doing, you are processing the information. हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं. सपोज एक फैकल्टी का अपॉइंटमेंट है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट है, लेटर came, this, that, file, you are processing everything else. You are processing only the information in the office. You are not doing any work without processing the information. आप ऑफिस इज ए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट. वेरी सिंपल रिप्लाई. ऑफिस में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और कुछ नहीं करते, बाकी खाली बैठे रहते हैं. यू कैन गिव द रिप्लाई लाइक दिस. ओके, एंड नो डाउट, वेरी सिंपल. बाकी यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या है, फाइल में भी कमिंग, डाक में भी कमिंग, लेटर में भी कमिंग, this may be coming, somebody personal in person is coming, so many things, communications are coming, maybe horizontal communication, maybe vertical communications, everywhere you are getting the communication, and you are at the middle and you are processing all the things. Of course you are provided with other persons to handle the job. अब अकेला नहीं कर पाएंगे. You may be any executive, you may be executive 1, 2, 3 or whatever may be, you are in a certain positions. With the help of others, you are performing your job. Now come to organization structure in the government of India. It varies from organization to organization. आप लोगों का structure अलग अलग है, so I am not going deeply into this. You know better than me, but the main fundamental structure I will show. मुझे आप पूछेंगे प्रोफेसर बड़ा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बड़ा है, एसोसिएट प्रोफेसर बड़ा है. My brother retired just 5 years back, 5-7 years back as a professor, Berhampur University, Dr. Vishnu Prasad Chaudhary, political science head and professor, retired. Okay, that much I know. I studied in Berhampur University. I have some contact with some of the lecturer professors like that. It is like that. So in the structure of the government of India, I am not going you tell the lowest छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है. President is the executive head. हमारा head जो है president है. Prime Minister हमारा Council of Ministers का head है. Then Council of Ministers है. Council of Minister is a cabinet minister, Minister of State, Deputy Ministers. These are the structure. And we are at the last. हम लोगों ने नीचे है एग्जीक्यूटिव से. एग्जीक्यूटिव कौन है, हम लोगों ने, जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं. कहाँ से शुरू है, चपरासी से लेके सेक्रेटरी तक, आपका एमटीएस से लेके चांसलर तक, वाइस चांसलर तक, लाइक दैट. तो यू नो द वी आर द लास्ट. हम लोगों ने लास्ट में है, बाकी बड़े लोग हमारा ऊपर है. मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर है. दे आर पॉलिटिकल, वी आर द रियल एग्जीक्यूटिव, वी वर्क इन द ऑफिस. तो I'm not going into the detailed structure there. गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, वो सारे है ना, जूनियर सेक्रेटेरिएट, सीनियर सेक्रेटरी, 10 थिंग्स इट इज ऑफ नो यूज टू यू. हम उसका ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे. अपने जॉइंट सेक्रेटरी तक आपको सारे पता है, गवर्नमेंट में सेक्रेटरी तक यू नो व्हाट आर द स्ट्रक्चर. बट वेयर वी गेट ऑल दिस वर्क, काम सारे कहाँ से आता है, कौन हमको काम देता है, डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग का क्या काम है,
डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का क्या काम है, मिनिस्ट्री HRD एजुकेशन मिनिस्ट्री कब हो गया, क्या हो गया. So very simple, you will click to cabsec.nic.in, cabinetsecretariat.nic.in. You will go to that allocation of business rule and transaction of business rule. Schedule 2 में ये दोनों रूल है, allocation of business rule and transaction of business rule, AOB and TOB rules. बोले इसमें क्या मिलेगा, व्हाट इज देयर इनसाइड हियर. आपको डाउट रहा कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का अंदर क्या क्या चीज है, कितना डिपार्टमेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस का अंदर कितना डिपार्टमेंट है आपको पता नहीं चल रहा है. जस्ट क्लिक द वेबसाइट cabsec.nic.in. Simply you will go to your allocation and transaction of business rules. There in the schedule 2 you will get this. Which ministry का काम क्या है, which department का काम क्या है, all this will. अभी आज का टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने मिनिस्ट्री है, how many ministries are there, how many departments are there, all this you will get it there. इसका कब चेंज हुआ था, HRD कब एजुकेशन हो गया, नीति आयोग कब बन गया, ये सारे आपको यू कैन गेट दिस डाटा फ्रॉम दिस. एंड इनका डिटेल वर्क, व्हाट वर्क इज विथ हुम, हायर एजुकेशन में है या ये जो स्कूल एंड सेकेंडरी एजुकेशन का साथ है. दिस ऑल यू विल गेट इट देयर, दिस allocation of business rule and transaction of business rule. Then there are different bodies in the government of India. We as an individual ministry department cannot do all the work. हम सारे काम नहीं कर पाएंगे. दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए है कि गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा डायरेक्टली इम्पार्टिंग द एजुकेशन टू द पीपुल. जो स्टूडेंट है उनको एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर पाएगा मिनिस्ट्री तो रूल फॉर्मुलेट कर देगा, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन वी रिक्वायर some other bodies. So government first of all decided to form the attached office and subordinate office. What is the function of attached office? You can say that attached office is the agency which is implementing the policy of the government of India. Government of India का policy को ये implement करता है. It provides executive directions for the implementation of the policy. It serves as a repository of technical information and advise the department on various aspects. For example, you can say DOPT, everybody know that Department of Personal Training. आप लोगों सारे को पता होगा. No DOPT. It is a. Can anybody tell what is DOPT? Can anybody tell what is DOPT? Sir, Department of Personal and Training. Yeah, what it do? क्या करता है, क्या काम कर रहा है ये? What work this department doing? Guidelines and rules that is to be implemented. Yes, yes. Good. So we all know that this is the nodal ministry which looks after, take care of the personnel. HR का काम कर रहा है ये, ह्यूमन रिसोर्सेस या HR मैनेजमेंट कर रहा है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट, ये सारे काम कर रहा है, ट्रेनिंग, सारे काम का जो ये DOPT का काम है. पोस्टिंग ऑफ सीनियर ऑफिसर्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इसका काम करता है. लेकिन ये डायरेक्टली DOPT cannot handle all the job. बोला कि ट्रेनिंग जॉब we cannot do directly. So there is a ISTM, Institute of Secretariat Training and Management, organization from which I belongs. What this ISTM is doing? ISTM is an attached office of Government of India. It is providing training to all the government employees. We are getting employees from JNU. Mostly JNU employees are coming for computer training. हमारा JNU का पास में है. So many employees are coming for computer. So many areas they are coming. So it is an attached office of Government of India. It is having the database for training database है.
and it advised the government on training matters. Policy formulated by DOPT, implemented by ISTM. ISTM helps DOPT to formulate the policy. Training policy formulate करने के लिए ISTM DOPT को help करता है. Why ISTM helps DOPT? DOPT is the policy formulation body. Can anybody tell? ISTM क्यों help कर रहा है? Yes, I am asking you a question so that you will ask me. My plan is this. Okay, I want to pass questions. क्यों DOPT को ISTM हेल्प करता है ट्रेनिंग मैटर में? तो सर ट्रेनिंग के लिए ही उसकी स्थापना की गई है। यस सर, बढ़िया बताया आपने। एक्सपर्टाइज ISTM का पास है। वी आर हैविंग द एक्सपर्टाइज। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक्सपर्टाइज डालना पड़ेगा। वी हैव टू गिव देम। एक ट्रेनिंग जो है 5 दिन का ट्रेनिंग करेंगे तो नहीं होगा, 3 दिन करना है। 1 महीना का ट्रेनिंग ठीक रहेगा या 2 महीना का ट्रेनिंग ठीक रहेगा? न्यूली रिक्रूटेड पीपल के लिए कितना दिन का ट्रेनिंग, फाउंडेशन ट्रेनिंग कितना दिन का रहेगा? वी एडवाइज द डिपार्टमेंट ऑन इम्पोर्टेंट training matters. DOPT, when they formulate a training policy, they take ISTM into confidence. सर हमारे पास आओ, ये काम है, कैसे करना है, प्लान बना के सारे दो। Then DOPT उसको चेक करता है, वेटिंग करता है। They do the vetting, they do checking. Then they बोले कि ये सही है। Now ये मिनिस्टर का अप्रूवल लेते हैं, इसको now implement करते हैं। It is like that. Policy goes like this. Policy इसी हिसाब से formulate होता है। So you got the idea what is attached office? Attached office जो है, it helps the department in the implementation of the policy implementation. ISTM का पास ट्रेनिंग का एक्सपर्टाइज है, तो ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए ये हेल्प करता है। ISTM helps DOPT for implementation of training. बोले attached office is okay. Now what is subordinate office? Subordinate office जो है field establishment है, वो डायरेक्टली फील्ड में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना हो, देखा होगा, CPWD अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का अंदर है। CPWD सेवा केंद्र, हर जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन जहाँ पे है एक CPWD सेवा केंद्र है। सेवा केंद्र में डायरेक्टली पीपल का साथ वो कॉन्टेक्ट है। सिमिलरली आपने देखे होंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, DGHS का DG डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, देन CGHS डिस्पेंसरी जो है सबऑर्डिनेट ऑफिस है, फील्ड में है। वो क्या करता है, फील्ड में काम करके लोगों का साथ अटैच्ड है डायरेक्टली। रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेल्ड एग्जीक्यूशन, माइन्यूटली वो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है। बोले कि ट्रेनिंग में ऐसे कौन सा है, हमारा अंडर में कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस नहीं है, कोई डायरेक्टली इम्प्लीमेंट, हमने सबऑर्डिनेट का काम करते हैं, ऑफिस का अटैच्ड ऑफिस का दोनों है। कोई डायरेक्टली इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, ट्रेनिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा काम इतना वॉल्यूमिनस नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हमारा कोई ब्रांच ऑफिस भी नहीं है, बिकॉज वी ऑपरेट एट द सेंटर। मोस्टली वी कंसंट्रेट ऑन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सबऑर्डिनेट ऑफिस हो गया। सबऑर्डिनेट ऑफिस क्या करता है, इट हेल्प्स फॉर implementing the policy at the grassroots level, minutely to implement the policy. When this subordinate office is directly under the department, it directly help the department. उसमें attached office कोई नहीं है, तो ये directly department को help करता है policy implementation में। बोले सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा ऑफिस attached है, कौन सा subordinate है, कहाँ मिलेगा? किसी मिनिस्ट्री का आपने देखना है, आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री का देखना है, उधर क्लिक करिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री को क्लिक करिए, क्लिक करके उसका अटैच्ड ऑफिस है, सबऑर्डिनेट ऑफिस है, वो लिस्ट आपको उसमें मिल जाएगा। सिमिलरली कितने बॉडीज आर देयर, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन का हिसाब से बना हुआ है। CAG एग्जांपल हो गया, CAG, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन का हिसाब से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इनका काम आप लोगों को पता है। इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आज आया है 4-5 स्टेट का,
तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इनका काम आपको पता है। यूपीएससी का काम यू नो बेटर देन मी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, इतने बॉडीज है, few organizations, they are statutory bodies established under the statute or act of the parliament. Statute, CBC, विजिलेंस कमिश्नर, CIC आपका इधर है, आपका JNU का पास में है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CBFS, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, नार्कोटिक्स कंट्रोल, NCBC, National Commission for Backward Caste, like that. So many statutory bodies are there. I take an example few. जब मुझे पूछेंगे सर ये बॉडी स्टैट्यूटरी है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? उसका वेबसाइट में क्लिक करिए, चेक करिए, नहीं तो कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को चेक करिए, so that we can give and get an idea. ये हमारे डिफरेंट बॉडी के बारे में जानते हुए क्या फायदा होगा, that I will talk and I will complete this 2-3 slides. इनके बारे में हमको पता हो कि क्या कर सकते हैं हम, विल सी दैट। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, देन ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी में गवर्नमेंट का जो है ऑटोनॉमी गिवन टू दिस बॉडीज, दे फंक्शन एज ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का हिसाब से है, पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि वन खलीकोट कॉलेज इज देयर इन उड़ीसा, गंजाम डिस्ट्रिक्ट, खलीकोट कॉलेज फेमस कॉलेज है, ऑटोनोमस कॉलेज है, ये ऑटोनोमस है, ये यूजीसी वगैरह का अंडर में है, लेकिन व्हाट वी नो खलीकोट कॉलेज, यू नो बेटर देन मी, आई डोंट हैव मोर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सा है, नेशनल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो, यू नो बेटर, बट खलीकोट कॉलेज आई गिवन यू वन एग्जांपल. It is an autonomous college. I am not a student of. I am not a student. I read from SKCG College, Parla Khamandi. It is border with Andhra Pradesh. So I read that is a government college, state government college. I read from that college and Berampur University. So it is partly funded by government and they are acting as a registered society. For example, आपका IIPA है, ITO में है, Indian Institute of Public Administration. Which is a registered society under DOPT. DOPT का ही autonomous body है. CBSE, Central Board of Secondary Education, they are autonomous bodies. They were given autonomy by the government. उनका जो day to day structure में government का interference नहीं है. आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी government का interference नहीं होगा. आपने किसी को छुट्टी देना है, आपका ऑफिस में क्या प्रोविजन करना है, आपको मिनिस्ट्री इंटरफेयर कभी नहीं करेगा। आप फर्नीचर कहाँ डाल के, रूम कौन सा साइड में आपका बीसी बैठेंगे, कौन सा साइड में कौन बैठेगा, इट इज योर प्रेरोगेटिव। गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू दैट। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन करके दे देगा, द पॉलिसी लेवल ओनली गवर्नमेंट विल बताएगा कि ये करो वो करो, 3 years डिग्री करो या 2 years डिग्री करो, दैट थिंग गवर्नमेंट विल टेल, बट गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। सिमिलरली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर देयर। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है कि FCI, PWC, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशंस, लाइक दैट। PPSC मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का अंदर है ये, एंड दे होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी बाय द गवर्नमेंट। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर नॉट कवर्ड अंडर द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बैंकिंग और जो है इंश्योरेंस ये नहीं कवर होते हैं। Attached office, I told you, CPWD, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन। सबऑर्डिनेट ऑफिस में आपने देखा नेशनल पुलिस एकेडमी, सिमिलरली सरदार इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव नागपुर। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, लाइक दैट। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट में हिंदुस्तान स्टील्स वगैरह है। कॉर्पोरेशंस, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, लाइक दैट। Societies registered under Societies Registration Act 1960, IIFT, Indian Institute of Foreign Trade, कॉमर्स मिनिस्ट्री का अंदर है। तो इन सारे बॉडीज का क्या हमने करना है कि सपोज जो लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोगों ने करते हैं, देयर इज ए सेट इन क्राइटेरिया कि हमने इनको नोट लिख के भेजेंगे या हमने इसको चिट्ठी लिखेंगे, OM लिखेंगे, ऑफिस मेमोरेंडम लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, या डेमी ऑफिशियल लेटर, DO लेटर बनाएंगे या खाली लेटर बनाएंगे।
उस लेटर में क्या रहेगा, रेड कलर का जो है एम्बलम रहेगा या ब्लू कलर का रहेगा। डीओ लेटर में गवर्नमेंट में 2 कलर में जाता है। आप लोगों का जो लोगो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आपका तो छापा रहता है उसका ऊपर टॉप में, लेकिन वो जो है लोगो में आपका जरूर कुछ होगा क्राइटेरिया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार उसका ऊपर साइन करेगा, या डेप्यूटी रजिस्ट्रार, या जॉइंट रजिस्ट्रार, या रजिस्ट्रार, इसका लेवल से जाएगा। There might be some criteria at your own, कौन इसका ऊपर साइन करके भेज सकता है चिट्ठी का ऊपर। जो लेटर लिखेगा तो क्या फॉर्मेट रहेगा, that we will talk in the afternoon sessions. So when we know about different bodies, then we can write the letters accordingly to these bodies, and whenever we require some help directly without going through the ministry, you can directly write to them. आपका बिल्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बाउंड्री खराब हो गया है, टूट गया है, आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री का थ्रू में अप्रोच करना जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली कैन कॉन्टेक्ट टू सीपीडब्ल्यू को भेज सकते हैं। सपोज मॉनिटरी ज्यादा खर्च हो रहा है, आपका बजट में नहीं है, यू कैन नॉट हैंडल दैट, देन एज ए प्रपोजल यू कैन पुट दैट बिफोर योर मिनिस्ट्री। अदरवाइज मिनिस्ट्री का जाना जरूरत नहीं है। फैक्चुअल मैटर्स, ordinary matter, small matter, you can directly write it to different ministry departments without going through the Ministry of Education. Education Ministry का through में जाना जरूरत नहीं है। These are the some of the bodies, you got some idea. There are so many functionaries are there. आप लोगों का functionaries जो है, you know the structure that very well, and what is there in the government of India, that functionaries is of no use to you. आपका कोई इसमें ये नहीं है, बट हमारा सेक्रेटरी जो है अपेक्स लेवल में है, लेवल में आज का लेवल हो गया है। पहले हमने पे बैंड बोलते थे, देन ग्रेड पे आ गया था, देन अभी लेवल में कैलकुलेट होता है। इतने सारे रूल है, पे का लेवल देखते हैं, फ्लाइट इंटाइटलमेंट देखना, this that everything whatever we see the level, not the basic pay, like that. So these are the different director हमारा 13A में है, and suppose deputy secretary is 12, under secretary is 11, हमारा इधर जो 66 है, I think आपका 6000 जो ग्रेड पे, you know this structure very well, ये बताना जरूरत नहीं है। Now we will go little forward. That the hierarchy in the government of India, I told you. Now come to managing डाक and receipts. डाक और रिसिप्ट में आप लोगों ने कभी देखा क्या, आपका ऑफिस में ऐसे कुछ फर्क है क्या? और किसी को डाक बोलते हैं, किसी को रिसिप्ट बोलते हैं। मिनिस्ट्री में तो स्पेसिफिकली बोलते हैं डाक और रिसिप्ट। आपका ऑर्गेनाइजेशन में है क्या? Can anybody tell me yes or no? They are calling R&D. Okay. R&D. R&D, R&I. Dark. Good. Okay. I will come to that also. That R&I. R&D तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, और R&D हमारा मिनिस्ट्री वगैरह में है R&D. Okay. R&I, receipt and issue. Okay, that is right. You are right. Thank you, sir. डाक एंड रिसिप्ट में the difference I will tell you in totality. डाक होता है कि जिस एनीथिंग जिस इट इज ए हिंदी वर्ड, इंग्लिश इसका कुछ नहीं है, नो इंग्लिश वर्ड फॉर दिस डाक। एनीथिंग वी आर गेटिंग इनसाइड द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और हैंडलिंग दैट दिस डाक। फॉर एग्जांपल फाइल इज ए डाक। फॉर एग्जांपल letter, that is a डाक। anything, any document, any CD, floppy, anything else which is required for handling office correspondence, कोई भी चिट्ठी है, डाक है, anything else, some material is there inside a pen drive, that is a डाक। anything else, mostly डाक मतलब चिट्ठी हिंदी में बोलते हैं, डाक है। but when it is a receipt सेक्शन में रिसीव होने के बाद, दैट इज रिसिप्ट।
सेक्शन में जब रिसीव हो गया है, इज रिसिप्ट. फॉर एग्जांपल, एनी लेटर कमिंग टू registrar university, a joint registrar university, that is a DAC. When that will trickle down the last person, section officer, to handle that one, that is a receipt. Receipt मतलब section में receive हो गया है, has already been received in the section, it is receipt. So any doubt here you want to ask in DAC and receipt? No. In ministry, you can ask me if you want to ask, you can ask. In ministry, what we tell, suppose this is a difficult matter where the section directly cannot take any decision, we put that letter, that file or whatever may be in front of the senior officer, higher officer to tell what to do there. So that is dark stage में senior officers को दिखा दीजिए. So this in the dark stage to the higher officers बोलते हैं. सेक्शन में रिसीव हो गया, that is चिट्ठी, लेटर, फाइल, whatever may be. So this is the final distinction between DAC and receipt. Okay. Now R&I, सेंट्रल रजिस्ट्री, CRU करके बोल सकते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट बोल सकते हैं, R&I रिसिप्ट एंड इशू बोल सकते हैं. WR विंग रजिस्ट्री भी बोलते हैं. कितने मिनिस्ट्री में विंग रजिस्ट्री मतलब बाहर से चिट्ठी उधर आएगा, अंदर से चिट्ठी बाहर जाएगा. लेटर विल कम हियर आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड एंड इट विल गो फ्रॉम हियर टू आउटसाइड आल्सो. इधर से बाहर जाएगा. दिस इज सेंट्रल रजिस्ट्री. R&I अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम होगा. हियर यू कैन receive all the letters, you can send all the letter. Can anybody tell कि क्या टाइम में हम चिट्ठी रिसीव करेंगे, इस टाइम में करेंगे या बाद में भी कर सकते हैं? Is there any provision in the university to get the DAC in after the evening hours? Provision है? Yes, Yes, very good. Good. 95%. Yeah. Because we have What is central registry. नाइट में कोई रहता है? नाइट ड्यूटी? No. Okay. So any urgent DAC, the DAC has to wait for next day, है ना? But the emails are checked by the concerned officer in sometimes. Yeah. But the DAC has to wait. Okay. But in ministry department, the chitti letter cannot wait. Somebody should wait for the letter to receive that in the office. रात भरा हमारा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में आदमी जागे रहते हैं. एक पर्सन का ड्यूटी रहता है. जनरली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल एम्प्लॉय को ड्यूटी दिया जाता है और उनको सैटरडे संडे ऑफ दिया जाता है. Those who come for the duty, नाइट ड्यूटी करना पड़ता है because letters are so urgent that cannot wait for the to see the dawn of the next day. तो रात में ही उसको आना पड़ेगा. like that बहुत सारी चीजें आते हैं. Even though then the letter is very important and urgent, रात में concerned officers का घर में लेके दरवाजा नॉक करके देना पड़ता है. It is like that also. क्योंकि by name and important आ गया, उसका घर में पहुंचाना पड़ेगा. यानी कि ऑफिस में डाल के चले जाएगा. ऑफिस खुला रहता है बिकॉज पता नहीं कैसे कौन सा आवर्स में डिसीजन लेना पड़ेगा. like that. So it is like that central registry where we receive the DAC and deliver the DAC from there to outside. DAC receipt का कोई टाइम नहीं होता. Any time we can, but ऑफिस का अंदर अब जो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम अलग होता है. दिन में 3 बार उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. 3 times in a day distribute inside the ministry. हमारा सेंट्रल रजिस्ट्री में डाक आ गया, लेकिन बाय नेम एक ऑफिसर्स का डाक आ गया, सीक्रेट वगैरह लिखा है, उसका रूम में लेके देना पड़ता है. अदरवाइज सेंट्रल रिसिप्ट में आ जाता है. सपोज आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई लेटर आपने भेज दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, तो वो CR में पड़ा रहेगा. उनका जो टाइम है वो टाइम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लेकिन बाय नेम आपने लिख दिया और अर्जेंट इमीडिएट ऊपर लिख दिया अर्जेंसी ग्रेडिंग, then it will go to directly to the that officers. somebody लेके उनका रूम में डिलीवरी कर सकता है.
रिसिप्ट ऑफ डाक ड्यूरिंग ऑफिस आवर, आउटसाइड ऑफिस आवर, ईमेल आप लोगों ने जैसे बोला ईमेल के लिए डाउनलोड के लिए somebody should be there, वो डाउनलोड करके चेक करके फॉरवर्ड करेगा कंसर्न ये को, मिनिस्ट्री का डाउनलोड आता है। istm@nic.in हमारा ISTM का है, it is a service, we get the email directly. And what is DAC? I told you, DAC includes whatever may be coming, and registration, सारे डाक को रजिस्ट्रेशन करना जरूरत नहीं है, इतने डाक है जहाँ जिसका अंदर कुछ नहीं है, समथिंग उसको फाड़ के निकाल दिया है, ऐसे डाक को हमने नंबर नहीं देते, बाकी एवरी डाक को हमने करते हैं, नंबर देते हैं। बट इफ इट इज ए विजिलेंस मैटर, इफ इट इज ए सीक्रेट टॉप सीक्रेट मैटर, उसको सेंट्रल रजिस्ट्री में ओपन नहीं करते, कंसर्न्ड ऑफिसर इंचार्ज को लेके देना होता है। ओके, एंड देयर आर 3 टाइम्स आई टोल्ड यू, 11 बजे, 11, 2 and 4 PM, 3 times we distribute the डाक इन द मिनिस्ट्री। आपका डाक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका उधर, आई डोंट नो इन योर यूनिवर्सिटी, बट इन व्हाटएवर डाक वी आर गैदरिंग, we are distributing this 3 times, 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे, Distribution. one collecting all after the opening of the office by 11, 11 से लेके जो कलेक्शन हुआ है up to 2 after immediately lunch से before going office 4 बजे we distribute whatever the डाक we are getting। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में बहुत सारे लेटर इधर उधर से फाइल आता है, it is easy saying than doing। उसमें 8-10 लोग मिनिस्ट्री में एक सेक्शन में पोस्टिंग रहते हैं, डाक को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक सेक्शन ऑफिसर है, बिलिंग हैंड 2 करीब होते हैं, बाकी MTS वगैरह होते हैं, they cannot handle that job also, they do this like this। if it is urgent, तब घर में डिलीवरी भी होता है, अर्जेंट डाक के लिए कोई टाइम नहीं, ऑफिस में तो ऑफिस में डिलीवरी होगा, it is like this। And there is a computerized diary system in the ministry department where we do diaries in computerized diary system, and personal staff also are having diary system। Whether a diary system is there with any of the officer in Delhi University, and I know that In every office has a diary system. Basically, we have a central registry, central direct dispatch department also, as well as the all concern, all branches. Some direct dispatcher is also. good, good। Whether higher officer is having a diary system and the central registry unit having separate diary system, a single diary system work in the whole university। Each and every office, including the higher officials, have their own diary and dispatch system apart from the central registry. Even in the DAC is received in the central registry, and if it addressed to the vice chancellor, it will go to the vice chancellor office, and from there it will be routed to the lower one. Excellent, excellent, full proof system is there। Similarly in the department also, we never miss any document, we never run behind any document। in ministry also, deputy secretary जो है 7600 जो ग्रेड पे है, deputy secretary and above, they do diary का जो पास पर्सनल स्टाफ है, they do the diary from there up to secretary, सब जगह पे डायरी होता है। but if a letter has given a diary number at the top, सपोज हमारा टॉप जो बॉस है सेक्रेटरी है, डायरी नंबर उनका स्टाफ ने दे दिया, वो नीचे आएगा तो उसको ही हमने रेफर करते हैं, दोबारा डायरी नंबर नहीं डालते। प्लीज रिमेंबर दिस वन, दिस सिस्टम इज गोइंग ऑन इन मिनिस्ट्री। इफ टॉप बॉस गिवन ए डायरी नंबर देयर, दैट कम डाउन, वी रेफर टू दैट डायरी नंबर। आवर डायरी नंबर डिफरेंट नहीं होता, सेम चलता है, लेकिन नीचे से आएगा तो हमारा डायरी नंबर, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी का जो स्टाफ है, they give the diary number, that go up। secretary can give separate diary number, उनके लिए it is up to them, but we follow this system। so now one question here, suppose a diary, a higher officer receives a letter
what that person is doing. उसको बुला के किसी नीचे को दे देता है या उसमें क्या करता है या खुद उसको पुट अप करता है. What is there? As a you are a joint registrar, आपका पास चिट्ठी बाहर से आ गया, आप क्या करेंगे? What you will do? या you are a AR, you are a DR. What you will do? उसको चिट्ठी को लेकर आप क्या करेंगे? Can anybody tell? सर चिट्ठी को लेके उसमें देखेंगे और उसको पुटअप करने के लिए अपने कंसर्न स्टाफ को मार्क करेंगे. ओके, सपोज डिफिकल्ट मैटर है, उसको बोलेंगे ले पुट अप कर या और कुछ गाइडेंस करेंगे. इफ इट इज ए डिफिकल्ट मैटर. जी सर, एक बार और बोलेंगे. सर डिफिकल्ट मैटर है. हेलो. हाँ सर बताइए, आवाज आ रहा है आपका, बताइए. हाँ सर, क्या पूछ रहे थे? सपोज एक डिफिकल्ट मैटर है, आपका पास चिट्ठी आके पहुंच गया है, आप पुट अप करने के लिए नीचे खाली देंगे या कुछ इंस्ट्रक्शन देके देंगे? डिफिकल्ट मैटर है तो उस पर पहले हम डिस्कस करेंगे अपने अधिकारियों के साथ. एक्सलेंट, क्या करना चाहिए. excellent, very good reply sir. Same happen in Government of India. What we do, suppose Jawaharlal Nehru University is setting up of a study center by doing an expenditure of 50 crore rupees. They given a letter to Ministry of Education, Deputy Secretary. The letter has come to Deputy Secretary. Deputy Secretary cannot mark that letter downward. 50 crore rupees is not a small amount, and that Deputy Secretary cannot take action directly. And JNU, the letter came from Vice Chancellor or Registrar JNU. They want to set up a study center on biotech or whatever subject may be, and they want to that money to set up the study center. So directly marking, instead of directly marking that letter, क्या करते हैं उसको? We take that letter, we go, we think what is the rule provision, whether as rule is there to release this money at this stage. If not, we go to our higher officers. चिट्ठी को लेके डार्क स्टेज में ऊपर चली जाते हैं, जहां हमारा ट्रेन में जहां हम जाके पूछ सकते हैं. सपोज कोई हैंडल नहीं कर रहा है तो उसको पूछने से नहीं बताएगा. कंसर्न चेन में वी गो देयर, आस्क व्हाट इज द, अभी क्या करेंगे? दे आर आस्किंग 50 crores. Whether we will tell now this is the end of the financial year, yeah, whether we are having money, can we release money, all we discuss, then we mark that to downside. नीचे को मार्क करते हैं, concerned junior officers को बोलते हैं कि you put up this in the file and this is the instructions. ये है, ऐसे करना है. उसको पैसा देना है 50 crore, मना करना है. If we are not to give, then we mark that one. So higher officer duty is not only to put the signature, but उसको देखना है कि चिट्ठी को पूरा निकले, मिनिस्ट्री से पूरा बाहर जाए. दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जैसे ही ये बाहर को हम जा सकता है. जैसे ये नहीं कि ये कोई देखते हैं बाद में इसको डाल देना उधर, ऐसे नहीं होता. We keep that because इधर चिट्ठी को पेंडिंग रखा, सेक्रेटरी को ईमेल आ जाएगा दोबारा कि चिट्ठी हमने भेजा था आपका डेप्यूटी सेक्रेटरी को स्टडी सेंटर सेटअप करने के लिए, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया. देन इधर से कॉल होगा, डेप्यूटी सेक्रेटरी को सेक्रेटरी बुलाएगा, इधर आओ, व्हाट इज दिस, आपको ये वाइस चांसलर या चांसलर रजिस्ट्रार चिट्ठी दिया था, वेयर इज द व्हाई, व्हाट एक्शन यू टेकन. सो नाउ इट इज ए टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी का जमाना है. वी कैनॉट सीट ऑन एनी लेटर, वी हैव टू वर्क विथ एवरी सिंगल लेटर व्हाट वी आर रिसीविंग इन द डिपार्टमेंट. उसका व्हाट्सएप में किसी को भेज दिया होगा, इधर ईमेल कर दिया होगा, मैनुअली चिट्ठी आ जाएगा. वी कैनॉट कीप दैट फोल्डिंग. Now last question here, suppose the letter is a disputed receipt. हमारा नाम पे आ गया है, हमारा नहीं है, हम क्या करेंगे? We cannot mark down, we have to consult the concerned persons. This is a matter regarding finance, this is a matter regarding admission, this is a matter regarding result, and you are handling this, you please. Then we will mark to that concerned officers in disputed cases. That senior officer is handling that one, that person only mark.
not the junior officers. अब जूनियर का हाथ में आ गया तो जूनियर मार्क करके दे देगा. मार्किंग कल ओनली सीनियर डू द जूनियर. जूनियर सीनियर को मार्किंग जनरली हम नहीं करते, हमने उसको दे देते हैं, लेके ऐसे भेज देते हैं, लेकिन मार्किंग करने से माइंड आल्सो. सपोज दैट ऑफिसर इज ऑन लीव, देन वी कैन मार्क देयर. वो छुट्टी पे है तो उनको मार्किंग करके भेज देते हैं. फाइल में भी लिखते हैं कि दैट ऑफिसर इज ऑन लीव, देन फाइल गो टू सीनियर ऑफिसर्स. दैट इज द क्राइटेरिया. In disputed receipt also there is a what section will do. Section is having all the rules, regulations, everything with them. आपका जो एडमिन सेक्शन है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन है, एडमिशन के लिए जो सेक्शन बना है, एवरीथिंग दैट सेक्शन हैविंग ऑल द क्राइटेरिया है. ये जो अप्लाई किया है ये बंदा एलिजिबल है नहीं है. पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, ये जो है एमएससी या एमए कहाँ से किया है, पीएचडी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है. एवरी रूल एवरीथिंग एल्स इट इज विथ देयर. ये नहीं कि आपने सीनियर को पूछेंगे क्या करना है. इन एवरी लेटर यू कैन नॉट आस्क देम, यू हैव टू टेक द डिसीजन एट योर ओन लेवल. ये एमएससी क्या है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी से क्या है, जहाँ से क्या वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दिस दैट हमने इनको अलाउ नहीं करेंगे. दिस इज इतना एज हो गया है, यूजीसी का गाइडलाइंस दिस दैट वी विल नॉट अलाउ. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डिसाइड एट योर ओन लेवल. आपने नहीं बोल सकते कि उसको भेज देते हैं, वो क्या करेगा, उधर भेज देते हैं, नहीं है. We have to take the responsibility at our own level, because at the section level, at the ground level, we are having all the rules. हमारा पास है जो आपका जो है that rule is known as departmental instructions. आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रक्शन है. हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का एक इंस्ट्रक्शन इंटरनल होता है, दैट इज स्पेसिफिक टू दैट डिपार्टमेंट. आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन का इंस्ट्रक्शन होगा, सारे एक जगह पे इंस्ट्रक्शन का एक गाइडलाइंस होगा. आपका हॉस्टल है तो हॉस्टल का गाइडलाइंस होगा. आपका हर जगह पे डिफरेंट गाइडलाइंस आते हैं. दैट इज इंडिविजुअली नोन एज डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन. डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन वेरी फ्रॉम मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री. डीओपीटी का कल्चर से वेरी करेगा, कल्चर वाला पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वेरी करेगा. इट वेरीज फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, वेरीज. दैट डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करते हुए यू हैव टू वर्क ऑन दैट. रिसिप्ट का डायराइज कंप्यूटर डायराइज है, आई टोल्ड यू हैव टू डायराइज एट द स्पेसिफिक लेवल. इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्यूटी सेक्रेटरी 7600 ग्रेड पे you can bring equivalence to your university, maybe deputy registrar, maybe 7600 grade, I don't know exactly. So that officers and above they are having diary system with them. साथ diary system के लिए personal staff attached है, and they will diarize the receipt. Suppose under secretary, I am under secretary in government of India. I am having a personal staff, but I don't diarize because the sections work I am directly handling. As a faculty in ISTM, as a deputy director, I am myself is a section, myself is under secretary, myself everything else. I am providing with a dealing and a data entry. I have to manage. I am looking after hostel. I am looking after ISO matter. I am looking after horticulture. तो ये सारे अपना लेवल पे करना है. I cannot tell कि मुझे कोई से गाइडलाइंस देगा. I have to prepare my own guidelines. I have to get that by senior officers. Similarly, moment of receipt के लिए डाक पैड वगैरह होता है. सपोज आपने एक चिट्ठी जो है रजिस्ट्रार को दे दिया है, एज ए डेप्यूटी रजिस्ट्रार यू गिवन ए लेटर टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार और वो रिटर्न आया नहीं है, whether you are having any responsibility? आपने कोई लेना देना नहीं है. आपने एक चिट्ठी को रजिस्ट्रार को भेज दिया है और उधर से रिटर्न नहीं आया है. What you will do? You will do anything else या you will leave it like that? फॉलो करेंगे उसको. हाँ बताइए सर. हम उसको फॉलो करेंगे up to the completion. फॉलो अप करना चाहिए. फॉलो अप करना पड़ेगा. वेरी गुड. फॉलो अप करना पड़ेगा. अदरवाइज वी डोंट बॉदर व्हाट इज गोइंग ऑन. हमारे पास आया, हम किसी को दे दिया, बाकी करे ना करे. Because sometimes the responsibility is fixed there when we are not handling that one.
बाद में आएगा कि इट इज मार्क टू रजिस्ट्रार को, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को मार्क हुआ था, उनको हमने दिया, वो कहाँ लिया पता नहीं चलेगा. So again some letter will come in your name as a reminder, as a memo, anything they can send. So don't neglect any receipt which is important. It may be a vigilance matter, it may be any matter. Registrar may want to hide that, registrar may want to not to. I am just giving example and don't take it as anything else. So you have to take the utmost responsibility for every letter what is coming to you. This also we talked. आपको उसमें काम करना है. You have to work on the receipt. You have to mark to the senior officers या junior officers depending upon the. These are the actions we can take on the receipt. We can mark it to dealing hand. We can mark it to junior. We can guide them. There are channel of submission is there. So we have to follow. And concerned officer will examine it properly as a senior to that. Suppose section officer आपका उधर है, section officer आपको फाइल पुट अप करके दिया है, you are a assistant registrar, you are a deputy registrar, आपने उसका रूल को चेक करके चेक करना है कि आपने सही हो रहा है कि नहीं है, to check that. The general principles for this management of these records are, you have to see the priority, which is prior document, अच्छा document है, उसको रख के बैठ नहीं सकते. नंबर ऑफ लेवल शुड बी मिनिमम. ये नहीं कि जितने चिट्ठी हमारे इधर आया है सारे बीसी का पास जाएगा, सारे लेटर जो है वाइस चांसलर विल चेक. ऐसे तो कोई नहीं है कि सारे चेक करेगा, सारे उनका पास जाएगा, तो वो काम नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे. लिमिटेड मैटर शुड गो टू द वाइस चांसलर. शुड बी डेलीगेशन ऑफ पावर एट योर लेवल. आपको डेलीगेशन ऑफ पावर दिया गया होगा जरूर, एंड हर लेवल पे कुछ ना कुछ पावर दिया गया है. According to that level, you have to see the level should be minimum. एक चिट्ठी आया है, कोई छुट्टी मांग रहा है, छुट्टी है तो सारे चैनल का थ्रू में थोड़ी ऊपर तक जाएगा. कहीं ना कहीं एक डिसीजन आपका जो है हेड ऑफ द ऑफिस को, हेड ऑफ द ऑफिस इज जनरली डेप्यूटी डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स. डेलीगेशन इज गिवन टू दैट पर्सन. आपका यूनिवर्सिटी वगैरह में होगा, उनको चार्ज दिया गया है, छुट्टी मांगेगा तो हाँ ना वो कर सकते हैं. ये नहीं कि हर चिट्ठी ऊपर लेके जाएंगे, प्रोफेसर चार्ज में है, चांसलर, वाइस चांसलर, ये नहीं कि सारे लेटर फाइल में पुट अप करके ऊपर तक जाएगा. सपोज कोई 2 साल 4 साल 5 साल लंबा छुट्टी मांग रहे हैं, 5 साल का कोई छुट्टी है क्या 5 साल तक? सपोज एनीबडी विल आस्क फॉर छुट्टी फॉर 5 years, देन अप टू 5 years. स्टडी लीव तो 2 years का है. 5 साल तक कोई छुट्टी है कि नहीं? While you can take extraordinary leave, you can take not any other leave without pay. So beyond 5 years, Ramnath Kovind saris will give that छुट्टी. 5 साल के बाद वो छुट्टी दे सकते हैं. गवर्नमेंट 5 साल तक अलाउ कर सकता है. So only in typical cases that file will go to the senior officers. आपका वाइस चांसलर तक जा सकता है टिपिकल मैटर्स. स्टडी लीव ले रहा है तो स्टडी लीव तो डेलीगेशन ऑफ पावर दिया गया होगा. सपोज स्टडी लीव से बियॉन्ड दूसरा कोई छुट्टी ले रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, देन यू हैव टू सी दैट कि इफ इट इज मोर देन स्पेसिफाइड पीरियड, you don't have that. Generally EL on leave we give it for 6 months, up to 6 months, 180 days. Okay, beyond 6 months we don't give leave. But if it is a group A and B gazetted officers, they are going to visit countries beyond the SAARC countries. SAARC countries आपका नेपाल, भूटान ये सारे हो गया. इससे बाहर कोई कंट्री जा रहे हैं, give them leave for up to 300 days. सपोज ये छुट्टी आपको कोई मांग रहा है 2 साल 3 साल 1 साल, मोर देन 1 year, ऐसे कोई छुट्टी मांग रहा है, यू कैन फाइल सीनियर ऑफिसर तक जाएगा. अदरवाइज द लेवल शुड बी मिनिमम. आपका हेड ऑफ द ऑफिस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज वाइस चांसलर. आपका कोई हेड जो है सीईओ है, सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हेड ऑफ द ऑफिस जो है डेप्यूटी डायरेक्टर लेवल का, अंडर सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर. So you have to see the file should go to the minimum level. Paperwork should be minimum and time should be least possible time. इतना कम समय में हमने उसको हैंडल कर पाएंगे.
एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों देखना पड़ेगा। ये नहीं कि 10 बार हमने चिट्ठी बनाया उसको फाड़ दिया, दोबारा चिट्ठी बनाओ फाड़ दो, ठीक नहीं हुआ, दोबारा लिखो काटो पढ़ो बस गया काम। तो एफिशिएंसी वी हैव टू ब्रिंग, हमने एफिशिएंसी लाना पड़ेगा काम। These are the general principles for handling the office work. Higher officers will go through, रूल का साथ मैच करेंगे कि जो हमारा गवर्नमेंट का रूल है वो मैच हो रहा है या ऐसे तैसे करके डाला हुआ है, नहीं तो हमने उसको बुला के डिस्कस कर सकते हैं ऐसे करके। फाइल को लेके बैठना किसी का पास अधिकार नहीं है, फाइल के लेके और सबमिट कर। We will put up this file after 1 month, after 2 months like that, but you cannot keep that holding. ऑफिसर फाइल को लेके बैठेगा नहीं, सिंसियर ऑफिसर विल नॉट होल्ड द फाइल। ये कोई जरूरत नहीं है। डीलिंग हैंड अपना काम करेगा, डीलिंग हैंड का सारे काम है। डीलिंग हैंड क्या करेगा, फाइल सर्च करेगा, नहीं है तो न्यू फाइल ओपन करेगा, ये कौन सा रूल में है, छुट्टी के बारे में है, कौन सा, एवरीथिंग दैट डीलिंग हैंड विल सी। डीलिंग हैंड का काम 100% है, ज्यादा है और रेस्पॉन्सिबल है। गलती होगा तो डीलिंग हैंड को ही पकड़ा जाएगा, सीनियर ऑफिसर्स को बाद में कोई पकड़ेगा, बोलेगा कि तो जो आईओ पीओ इंक्वायरी ऑफिसर सारे सीनियर ऑफिसर का भाई चाचा दोस्त अंकल सब होंगे। जो जूनियर ऑफिसर हमेशा फंस जाता है, इसलिए जूनियर ऑफिसर्स को निर्भय होके काम करना है, फियरलेसली काम करना है एज पर रूल। हम बोलते हैं कि FR इज ए लेटर, अंडर सेक्रेटरी नो बेटर। हमको इसमें समझ में नहीं आता ऐसे करके हम दे देते हैं, तो वो अंडर सेक्रेटरी उसको हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ बोल रहा है वो कुछ बोल रहा है। तो ऐसे जगह पे इसलिए जो डीलिंग हैंड है पार्शियलिटी नहीं होना है, रूल को लेके सीनियर ऑफिसर्स को बोलना है कि सर ये रूल है आप देख लीजिए, आपका नाम पे मैं टाइप कर दूंगा बट आई विल नॉट साइन देयर सर, रूल कुछ बोलता है आप कुछ बोलते हैं। So the dealing hand should be impartial and straightforward person. वो गपलादी करना लग जाएगा तो then everything will be a problem there. Higher officers is there to guide the juniors. जूनियर को डांट के नहीं भगाना, एज ए AR DR एंड रजिस्ट्रार हमने नीचे को डांट के क्या है तुम गधे हो कैसे पुट अप किया है, व्हाट इज दिस, this is not required. The higher officer don't think that everything is junior का काम है, उसमें गलती करेगा, उसमें कुछ सेंटेंस गलत लिखा है, ऊपर को भेजा, ऊपर के लिए आप जूनियर हो, ऊपर में BC का पास गया या रजिस्ट्रार का पास गया, जॉइंट रजिस्ट्रार ऊपर से बोलेगा यार आपने पढ़ा नहीं, उसने तो गलती किया, आपने क्या किया। तो उस टाइम आपको भूलना नहीं कि आपका ऊपर भी कोई है, सारे का ऊपर कोई ना कोई गवर्नमेंट में है, हम लोगों ने सारे एग्जीक्यूटिव है, इसलिए हम लोगों ने बॉस नहीं है, गवर्नमेंट का सर्वेंट है। उसको ध्यान रखते हुए हायर ऑफिसर नहीं सोचेगा कि मैं साइनिंग लेवल पे हूँ, मैं साइनिंग लेवल पे हूँ, मैं साइन कर दूंगा, मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है, नीचे जब ढूंढेंगे देन प्रॉब्लम होगा, रूल कुछ उल्टा होगा और कुछ होगा, देन यू विल बी इन ए सूप। सो प्लीज रिमेम्बर you are any officer that is well and good, but you should not think that कि हमको क्यों ये करना पड़ रहा है। Recently I handled a training program of section officers and under secretaries, and the under secretaries they are thinking that कि हम तो इतना senior level पे पहुंच गए हैं, under secretary after 15-20 years of service, I am now, सर हमने signing level पे है, they are telling हमने साइनिंग लेवल पे है, हमको नोटिंग ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन क्यों दिया है, बट दे आर नॉट एबल टू हैंडल द नोटिंग ड्राफ्टिंग क्वेश्चन। उसमें नोटिंग ड्राफ्टिंग में क्या होना है, पर्सनल लिखना है, फीलिंग क्या होना है, दिल से लिखना है दिमाग से लिखना है, दैट कॉन्सेप्ट इज देयर। इट इज नॉट दैट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स ऑफ दैट लेटर। नोटिंग जो लिखेंगे दिल से सोच के लिखेंगे या दिमाग से लिखेंगे, दिल दिमाग दोनों यूज करेंगे। आफ्टर और एक लास्ट सेशन में बात करेंगे सेकंड नोटिंग ड्राफ्टिंग का क्लास में। तो दे शुड नॉट थिंक दैट कि दे आर एट द साइनिंग लेवल, डोंट प्लीज थिंक दैट यू आर एट एज ए डेप्यूटी रजिस्ट्रार or joint registrar, like you will sign their own. So you should be work there as a worker. नीचे तो पुट अप करेगा, ASO SO सब पुट अप करके लाएंगे,
बट आप भी जब नोटिंग पढ़ेंगे, think that you are putting up that note. आपने खुद अपने लेवल पे सोचिए कहाँ गलत हुआ, ये रूल बदल गया है, पुराना रूल लगा के दे दिया। आपको सीनियर बोलेगा यार आप अपडेटेड नहीं हो, आपका इमेज खराब होगा। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। What is expected from an officer? Officer should guide the junior and see that the junior should put up the file properly. उसको नहीं आता है तो डिक्टेशन भी देना है। देखो तुम ऐसे लिख लो, जल्दी जल्दी बाद में टाइप करके लाओ, उसको ऐसे लिखो, ऐसे पुट अप करो, रूल में क्या है पढ़ो, नहीं तो तुम सेक्शन ऑफिसर तुम दोनों आओ, केस लेके आओ फाइल को। यू हैव टू हेल्प देम टू लर्न। हर टाइम आपने उनको डिक्टेशन दे नहीं सकते, यू कांट गिव डिक्टेशन ऑल टाइम टू दैट एसओ एसओ। यू हैव टू वर्क एज ए मैनेजर, you have to manage, not as a worker but as a manager. Sometimes you have to work, sometimes you have to manage as a senior level. And आपने वो manage नहीं किया तो you have to work as a worker. It is up to you whether you want to work as a manager or you want to work as a worker. अपने फाइल को इकट्ठे करके बैठना है because you are a manager, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, या as a worker I have to work. As a manager efficiently, you have to think and decide depending upon the case, depending upon your subordinates. Language is not a matter. हिंदी में पुट अप करिए, इंग्लिश में पुट अप करिए, काम निकलना चाहिए, फाइल आगे जाना चाहिए। That you have to keep in mind. पेपर को पंचिंग टैगिंग that things are, you know that in Government of India मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो कॉरेस्पॉन्डेंट साइड राइट साइड में होता है और नोटिंग लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन जो लेटेस्ट वाला है डीओपीटी वगैरह मिनिस्ट्री में लास्ट में लगाते हैं हमेशा। बट एक मिनिस्ट्री है डिफेंस में नीचे से है, ऊपर में जो है लेटेस्ट है, और मिनिस्ट्री आपका यूनिवर्सिटी में कैसा है मुझे पता नहीं है, बट लेटेस्ट इज ऑलवेज एट द एंड इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फाइल्स। दिस इज द क्राइटेरिया। It is there in यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, it is at the top at the last, आपका जो लेटेस्ट रिसिप्ट जो है At the top. Front side, front. ऊपर ही है, हाँ जी, at the top. ऊपर ही है। ऊपर आता है। हाँ जी। Okay, but in government we put that at the end. Mostly 99% मिनिस्ट्री जो है एंड में लेटेस्ट वाला पेपर आता है, और टाइपिंग करके साइनिंग के लिए जो है, साइन करने के लिए जो रखा है उसको हमने फाइल का मिडिल नोट और करस्पॉन्डेंस का मिडिल में रख देते हैं। अदरवाइज जो FRPUC हम बोलते हैं उसको फाइल का लास्ट में ही लगाते हैं। We will come to that later in the afternoon also. नेक्स्ट क्लास में आएंगे। Then volume 1 and volume 2 का concept है। Is it there the volume 1, volume 2 concept in the Delhi University? Is it Yes, sir. there? Yes, sir. What is that volume 1 and volume 2? Volume 1 is basically for the noting portion and volume 2 for the corresponding portions. It is in the same file or in the different files, sir? Different files, sir. Okay, different file. Is he right what he is telling? Anybody? तो same लगाते हैं। दोनों अलग अलग नहीं हो जाएगा, बिछड़ नहीं जाएंगे दोनों। Same file, same file. Same file, same file. Okay. So then what is the concept of volume 1, volume 2? Yes, anybody? वॉल्यूम 1 के अंदर जो भी रेफरेंस है वो रह जाएंगे, वॉल्यूम 2 में जो हमारा आउटपुट आ रहा है, जो उस पे नोटिंग दे रहे हैं वो आ जाएगा। No, sir. Actually, volume 1 and 2 were previously used in the Delhi University. Ki when the particular file becomes bulky, Excellent. then its file is moved into the another file, and only the documents which is relevant for the last 6 months or the years, and that is moved separately. For that purpose, you use volume 1 and volume 2. Clapping, sir के लिए clapping please. Clapping for sir. Excellent reply, sir. This is the right principle. What when it is bulky, say 200 to 300, 150 to 200. So when it is 200, maximum noting plus correspondence both मिला के, but it is not 100%
sacrosanct. Sometimes what happen, root cases वाला फाइल हम अलग नहीं कर पाते, इवन तो 2 टैग में भर जाता है, एक टैग में भरा हुआ इधर से, दोनों टैग में भर जाता है, 2 टैग मिडिल में बांध के वो भी करते हैं समटाइम्स, बट 150 to 200 जब हो जाता है, हम क्या करते हैं, उस फाइल को वॉल्यूम 1 कर देते हैं, सेपरेट एक वॉल्यूम 2 फाइल खोलते हैं, एंड वॉल्यूम 2 का जो नोटिंग एंड करस्पॉन्डेंस का पेज नंबर इन कंटिन्यूएशन फ्रॉम द वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 का कंटिन्यूएशन में वो चलता है, ये नहीं कि इसको अलग छोड़ देते हैं, कंटिन्यूएशन में चलता है. Got it? Yeah, I will tell again. And noting from the volume 1, we take and put in the volume 2. क्योंकि नोटिंग हमेशा कम होता है, करस्पॉन्डेंस से ज्यादा हो जाते हैं, करस्पॉन्डेंस को हम छोड़ देते हैं वॉल्यूम 1 में 150 to 200 तक है, एंड वॉल्यूम 2 में we take the noting of the volume 1 and new noting जो चढ़ाएंगे that also. So volume 2 is like this. So same concept, I think it is there same in the ministry, आपका यूनिवर्सिटी में भी, क्योंकि आपने जरूरत नहीं पड़ता होगा, आजकल कंप्यूटराइज हो गया बहुत सारे, और इसीलिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता होगा, ईयर वाइज आप लोगों ने फाइल खोल देते हैं, इसलिए आपको कोई मोस्टली कोर्ट केस वाला फाइल है, ऐसे कुछ 2-4 फाइल में ऐसे प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज इट इज लेवल ऑफ डिस्पोजल एंड चैनल ऑफ सबमिशन. हर जगह पे लेवल का सिस्टम है, यहाँ पे लेवल का जंपिंग करके हम जाते हैं, आने का टाइम जो लेवल जंप कर लिया उसका थ्रो में होके आना पड़ता है. दिस लेवल जंपिंग सिस्टम इज देयर. इधर जो है अंडर सेक्रेटरी कैन पुट फाइल टू जॉइंट सेक्रेटरी, ये 6600 ग्रेड पे है, जॉइंट सेक्रेटरी 10,000 ग्रेड पे है, सेक्रेटरी टॉप में है, यू नो दैट. ऐसे भी हमारा फाइल मूव हो सकता है. We try to keep the level to the minimum. लेवल को हमने मिनिमम रखने के लिए कोशिश करते हैं. यहाँ पे लेवल जंप हो जाता है, आने का टाइम हमने उसका थ्रो में आने के लिए फाइल को बोलते हैं. सीनियर असिस्टेंट ओरल डिस्कशन, आपको सीनियर कोई बोल दिया है फाइल पुटअप करो, तो आप करेंगे क्या? ओरल में कोई बोल दिया, आप बोलेंगे कि राइटिंग में दो कर. What you do? बोलेगा क्या, फाइल पुटअप ये करो, मार्केट में जाओ, एक परचेज करके लाओ, बड़े से दुकान से बोलो, दे देगा, बाद में पेमेंट कर देंगे, आप कर लेंगे, बोलेंगे राइटिंग में दीजिए, आपका बॉस बोलेगा यू डू दैट. राइटिंग में हम मांगते हैं, पैसा दीजिए हम लाएंगे. आपका सपोज VC रिटायर हो रहे हैं, VC को गिफ्ट देना है, आपको बोलेंगे यार पड़ोसी दुकान में जाओ, गणेश का स्टेचू ले आओ, गणेश जी का बड़ा स्टेचू ले आओ. अब ले आएंगे या पैसा मांगेंगे उसको? सर ले आएंगे, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेंगे. बाद में करेंगे, वो ला के देने के अगले दिन बोलेगा मैंने तो नहीं बोला तुमको, क्या करेंगे? नहीं सर, ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर का कमांड आएगा तो यू नीड टू फॉलो, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये हमें भी पता होता है कि कौन सा ओकेजन हो रहा है, किस ओकेजन पे क्या चीज आ रही है. एट टाइम्स एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी पूरी करना वो नहीं होता कि टाइम इतना निकल जाएगा कि वो इवेंट निकल जाएगा. फिर कस्टमरी ओकेजन हम कर देंगे, इन कस्टमरी ओकेजन्स एग्जैक्टली ऑन अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस एज सच. हाँ. बाकी इन नॉर्मल कोर्स में कोई बोलेगा कि यार एक एयर कंडीशन चाहिए, वो पड़ोसी दुकान है, फोन करो आके लगा देगा, तो आप नहीं लगाएंगे, बोलेंगे कि यार उसके लिए सर फॉर्मेलिटी है, टेंडर होगा, ये होगा, ऑफिस का सारे है. बट इन कस्टमरी ओकेजन यू विल डू. इन नॉन कस्टमरी ओकेजन आप बोलेंगे सर ये रूल को देखना पड़ेगा, लाइक दैट. वेरी गुड रिप्लाई सर, मेरा काम हल्का कर दिया आपने. गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग डिपार्टमेंट का अंदर होता है, ये करना है नहीं करना है. ये नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस का जो है डिजाइनिंग करना है, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है. ये साउथ कैंपस भीड़ भटका एरिया में है या नॉर्थ भटका, so you have to think that you have to बाउंड्री लगाना है, रिमोट कंट्रोल बाउंड्री क्या लगाना है, you have to brainstorm. देन आपने जितने स्टेक होल्डर है आपने सारे को पूछेंगे, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जितने कॉलेज वगैरह
सारे जगह पे आपने व्यूज ओपिनियन वगैरह लेंगे, देन एक पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी बना के पहले आपने कंसल्ट लिया, देन मिनिस्ट्री को कंसल्ट करेंगे। पहले मिनिस्ट्री को कंसल्ट करेंगे, बाद में आपका इंटर कॉलेज वगैरह को कंसल्ट करेंगे। लास्ट को आपने जाके से मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेंगे। मिनिस्ट्री देखेगा डिफिकल्ट मैटर है, ये कैबिनेट का इसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो कैबिनेट का पास जाएगा। कैबिनेट के बाद हो गया कैबिनेट से तो ओके, अदरवाइज जो पार्लियामेंट तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन द मैटर। गवर्नमेंट का पॉलिसी फॉर्मुलेशन बड़ा आसान नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। सारे स्टेज का थ्रू में जाना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर को साथ में लेना पड़ेगा। और बताएं। जो टर्मिनोलॉजीज आर देयर, ये आफ्टरनून में नेक्स्ट सेशन में भी देखेंगे, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद। नोटिंग ड्राफ्टिंग आफ्टरनून में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नोटिंग ड्राफ्टिंग के बारे में। इसको ना इसके साथ लगा देना। नोटिंग मिनट, एक स्मॉल concept I will tell you now. You know what is referencing? Referencing पता है आप लोगों को? फाइल का रेफरेंसिंग करते हैं, you know that? जानेंगे? Anybody can reply? Yes, referencing होता है सर फाइल का। रेफरेंसिंग उसको टिक करते हैं, साइड में हम टिक करते हैं, बोलते हैं कि ये जो है इतना नंबर पेज में है। इनको I am getting म्यूट हो गया, somebody का आवाज आ रहा था। ओके, तो you are doing referencing कि सपोज कोई पेज नंबर का रेफर मार्क करके, whether you are doing docketing करते हैं कि docketing whether you are doing docketing, yes or no? No. In some departments, it was done in the University of Delhi, like in the University Press. Very good, sir. On that time, docketing also done by the University Press. Yes. So little bit I am concentrating on this docketing. Docketing, how it helps. See, this is a letter. This is a letter. Of course, what content is not required. This letter I received from outside, and I want to put a note for this. इसके लिए मैंने एक नोट पुट अप करना चाहता हूँ. What I will do? I given serial number 1R at the top. Serial number 1R. R for receipt. Right? R for मैं बाहर से चिट्ठी मिला है, मैंने रिसीव किया है. I return a serial number 1R. R for receipt. Page number 1. पहला पेज है. In the note sheet, when I entered into the note sheet, this is my note sheet. File number, Government of India, DOPT, ISTM, जो भी है, University, admin unit, admin section, establishment section, या policy section आपने लिख सकते हैं, जो भी आपका है. Serial number 1, ये red color pen में लिखना होता है in physical file. ई फाइल में ये कंसेप्ट नहीं है. सीरियल नंबर 1 आर फॉर रिसिप्ट. पेज कितने पेज का है? एक पेज का है. पेज 1 कॉरेस्पॉन्डेंस. देखिए ऊपर वाला कौन सा है? ये है, एक पेज का लेटर है. ऊपर लिखा है सीरियल नंबर 1 आर. So bringing this serial number from the correspondence side, putting in the note side here in red color pen, this is known as docket. Suppose 2 पेज का चिट्ठी आया होगा, if it is a 2 page letter, serial number 1R page 1-2 correspondence, 1-2 correspondence ऐसे होगा. Then subject. How this docketing helps? ये जो नोटिंग कोई पढ़ेगा उसको सीधा वो पेज नंबर में पहुंच जाएगा. उसको FR PUC जो मार्क करके हम लिखते हैं वो देखना जरूरत नहीं पड़ेगा. यहीं से नोटिंग स्टार्टिंग से देख लेगा ये जो पेज कितना नंबर पेज में है, क्योंकि आगे आगे फाइल बढ़ जाता है. ये जो है नोटिंग जो है छूट जाता है पीछे और न्यू नोटिंग आता है.
ये जब नोटिंग में जाएगा तुरंत इसका चिट्ठी मिल जाएगा। इसके लिए इसी लेटर नोटिंग बना हुआ है। For which letter this noting is there, from this docketing one can understand. So docketing is very very important. ये डॉकेटिंग हमको हेल्प करता है कि कौन सा पेज में चिट्ठी है, क्योंकि नोटिंग चढ़ता रहता है, एक के बाद एक नोटिंग आता रहता है, इसके बाद दूसरा पेज आएगा, नेक्स्ट आएगा, न्यू नोटिंग आएगा 15 दिन के बाद। यू कैन नॉट टेल कि एक ही नोटिंग में फाइल खत्म हो जाता है। सो दिस डॉकेटिंग हेल्प्स अस टू नो द वेयर द लेटर इज available, or whom this noting, for which letter this noting is done. This helps us that one. So docketing is very very important. Referencing is ये नीचे देखिए और एक सैंपल है, राइट साइड में करस्पॉन्डेंस है, पेज नंबर 22, सीरियल नंबर 17R, 1 से लेके 16 चले गया है, बहुत सारे लेटर फाइल में जमा है, 17 नंबर लेटर है, ये एक पेज का है। Docketing is at the top. See, serial number 17R, page number 22/C. मतलब इसी नोटिंग को देखते हुए कोई भी बोल देगा कि ये जो है कौन सा पेज में इसका लेटर है। ये जो है देखिए नीचे आईडी नोट का ऊपर एक स्टार मार्क है ग्रीन कलर का, उसको इस साइड में स्टार मार्क देके पेज 10-12 करस्पॉन्डेंस, इसको हम बोलते हैं रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग क्या है? सपोज आपने कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का चिट्ठी लगाया, किसी का चिट्ठी इधर अटैच किया, रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग ऊपर में जो रेड कलर में है दैट इज डॉकेटिंग। डॉकेटिंग हेल्प्स अस टू लोकेट द लेटर वेयर इट इज अवेलेबल इन द फाइल। आई थिंक नो डाउट, आगे चलते हैं। टोटल इंस्ट्रक्शन बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। कैसे लगे जो काम नहीं करना है इसको, नेक्स्ट इसको बोला हुआ काम करना है जो। Sir Sandeep, mute your. There are so many aids which helps us to put up a file. बहुत सारी चीजें हमारा पास होता है, तो नॉलेज मैनेजमेंट हम बोलते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारे हमको हेल्प करता है कि फाइल को पुट अप करने के लिए। रेफरेंस फोल्डर होता है जहाँ पे लेटर चिट्ठी जहाँ से आता है सब रखते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट होता है। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट मतलब कि सबको छुट्टी लेना है, एक आदमी एप्लीकेशन लिखेगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, प्लीज प्रोवाइड मी 1 day लीव, कुछ लिखेगा, इसलिए बना दिया कि बना दिया। आजकल कंप्यूटराइज हो गया है, कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, CL चाहिए, EL चाहिए, और उसमें लिखते हैं आउट स्टेशन जाना है, नहीं जाना है, छुट्टी पर्पज के लिए, अर्जेंट होमवर्क, ये सब उसमें आजकल ड्रॉप डाउन बटन भी है, उसमें सारे इंडिकेशन दिया हुआ है। स्टडी पर्पज के लिए आपने रह रहे हो, मेडिकल हेल्थ कंडीशन में फीवर है या क्या है, अर्जेंट होमवर्क है, सब कुछ लिखा हुआ है। That to it see and apply the leave standard process sheet. Standard process sheet होता है। Somebody mute. मेरी आयु 25 वर्ष से कम थी। Sound is यहाँ clear. reclaim जोड़ दो और यहाँ साइन भी कर देना। Okay. So now see, these are the knowledge management. ये सारे हमारा पास जो है स्टैंडिंग नोट होता है। स्टैंडिंग नोट प्रेसिडेंट बुक में क्या है कि पिछले साल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो हुआ था, वो एडमिशन में केमिस्ट्री के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कितना परसेंटेज मार्क गया था, तो आपका उसमें लिखा हुआ है। तो वो सारे आपको अगले साल का आपने देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, क्या करेंगे कि हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है साइंस में 70% से जो ज्यादा लाया है 10th क्लास में, उसको हमने एडमिशन देंगे केमिस्ट्री में। 11th क्लास का साइंस में देंगे, साइंस एंड मैथ में दोनों में 70 से ज्यादा आया, दैट इज आपका प्रेसिडेंट बुक में रखा। या एक स्टैंडिंग नोट आपका बना हुआ है जहाँ पे भी आपका ये सारे फिक्स है, 70% से जो ज्यादा लाया है 10th में या 12th में, उसको हमने एडमिशन देंगे ग्रेजुएशन कोर्स के लिए।
अदरवाइज हम एडमिशन नहीं देंगे। तो गार्ड फाइल, स्टैंडिंग गार्ड फाइल में इंपॉर्टेंट मैटर डिसाइड हुआ होगा कि आपका जो है एग्जाम का टाइम पे ये होगा, ये सारे गाइडलाइंस है। तो ये सारे आपको फाइल पुट अप करने में हेल्प करता है। इसी साल का एडमिशन में हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। सो दीज ऑल आर नॉलेज मैनेजमेंट, दीज आर ऑल आवर रिसोर्सेस, वी कीप दिस इन स्टोर इन द डिपार्टमेंट, हमारा फाइल पुट अप करने के लिए हेल्प होता है। अदरवाइज हमने आगे को ब्लैंक रहेंगे कि क्या करना है। जो गाइडलाइंस नहीं आया तो पिछले में क्या था, सो दीज आर देयर इन मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, आपने क्लिक करके उसको जाके पढ़ सकते। सिमिलरली लास्ट इज चेक ऑन डिले। हमारे ऑफिस में कोई काम जो है ज्यादा टाइम तक पेंडिंग नहीं है, मिनिमम 7 डेज तक उसको पेंडिंग से रख नहीं सकते, मेमो इशू हो सकता है। ऊपर से सीनियर ऑफिसर एक मेमो इशू करेगा कि कंसर्न नाम में यू मे एक्सप्लेन why the letter file is pending with you for more than 7 days। इसलिए सारे को पता है nobody keeps anything pending in the department, at the earliest they put up। suppose a reply will be difficult, interim reply दे देते हैं। बाहर से कोई चिट्ठी आया है, require attention, urgent attention, we are not in a position to reply, we give an interim reply, your matter is under process, as soon as it will be done we will come back to you। in that way we concerned branch officer under secretary जो है वीकली डिले वाला को हैंडल करता है, चेक करता है इट इज ओके और नॉट, इस चीज डिले तो नहीं है। पार्लियामेंट मैटर में यू थिंक अबाउट द डिले है तो गर्दन में चाकू गिरेगा, है ना। वी कैंट कीप एनीथिंग पार्लियामेंट मैटर। मंथली स्टेटमेंट देना पड़ता है कि व्हाट आर द थिंग्स पेंडिंग हियर और देयर लाइक दैट। then file management, I'm bypassing some of the things। file numbering system is there are two file numbering system in government of India, one is conventional, one is functional। आपका conventional भी है, functional है, दो है, क्या है वो देखेंगे। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सारे जगह पे इससे बियॉन्ड कुछ नहीं, बाहर से कोई नंबर कुछ डाल दिया आलतू फालतू में तो फाइल नंबर ही नहीं है, don't bother for that, that is some number given, diary number given, उस नंबर दे दिया उसने। लेटर का नंबर है, आपने जैसे कि बहुत सारे जगह से आता है दिस इतना नंबर ऑब्लिक डेप्यूटी रजिस्ट्रार ब्रैकेट में सी ब्रैकेट में दिस 2021-22 ऐसे करके लंबा सा, दैट इज नॉट ए फाइल नंबर, दैट इज अपना रेफरेंस नंबर दिया हो मैंने, वो नहीं फॉलो होता है। वी डू फाइल नंबर ही हम चिट्ठी का ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने लेटर आपका पास आया होगा आपने देखेंगे 99% जो लेटर है उसमें फाइल नंबर हो, डायरी नंबर देते नहीं है हम लोगों ने, रेयर, क्रिएट प्रॉब्लम, वो हमारा भी ट्रेस नहीं हो पाता। फाइल नंबर इज फिक्स्ड, सो वी गिव द फाइल नंबर। वन इज कन्वेंशनल, दिस इज कन्वेंशनल, पुराना पैटर्न में फाइल नंबर है। See the file number written in the middle 8/3/2021 admin, फाइल एडमिन का है, 2021 का है, 2021 का फाइल है 2021। मिडिल में 3 जो है रनिंग सीरियल नंबर है, हार्ड फाइल है ये इस सब्जेक्ट में। 8 क्या है, 8 के लिए आपका डिपार्टमेंट में फिक्स है, 8 के लिए क्या है, परचेज ऑफ utensils या परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम्स या फिलिंग पेट्रोल, जो भी आपने एक स्टैंडर्ड हेड दिया है, हेड फिक्स है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। और मिडिल वाला क्या, रनिंग सीरियल नंबर है, 3 नंबर फाइल है ये, उसमें 3 नंबर फाइल है, ये बढ़ते जाएगा 3 4 5 बढ़ते जाएगा, ये और फिक्स है। एडमिन तो एडमिन सेक्शन है, 8 नंबर जो है स्टैंडर्ड हेड है, स्टैंडर्ड हेड या मेन हेडिंग बोलते हैं। This is conventional files and numbering system allowed in most department ministries। जैसे कि बेसिक हेड जो है ये फंक्शनल फाइलिंग के लिए ये अलग सिस्टम है। कन्वेंशनल फाइल नंबर आपने देखा 8/3/2021 एडमिन, कन्वेंशनल फाइल है। फंक्शनल का फाइल का एक मैं दिखाता हूँ, मेरे लास्ट में देखिए इधर ये ए देखिए, ए इधर आई एम हाईलाइटिंग दिस A-22/015/2021 admin,
हाईलाइट हटा दिया इधर। ये जो है ये क्या है, एडमिन तो एडमिन सेक्शन है, 2021 तो ईयर है, मिडिल का जो 3 है रनिंग सीरियल नंबर है। A2200 इज ए सेपरेटर हियर, 0 इज ए सेपरेटर। ये क्या है, ये क्या है, स्टैंडर्ड हेड है। एग्जांपल यूसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ए फिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस का वेबसाइट में दिया है, कौन सा के लिए कौन सा हेड रहेगा। बी वेलफेयर के लिए, सी विजिलेंस के लिए फिक्स है। उधर से हम लेते हैं हेड जो है, और फाइल नंबर में देखिए ए एस्टेब्लिशमेंट के लिए डैश इज हाइफन जो है सेपरेटर है, 22 बेसिक हेड है, 0 सेपरेटर है, 15 जो है सेकेंडरी हेड है। 22 क्या है, 22 सपोज है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर्स, 0 सेपरेटर। 15 क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनो ग्रेड डी स्पेसिफिक सब हेड है, स्टेनोग्राफर का सब हेड स्टेनोग्राफर, स्टेनो डी है। सपोज 16 होता, स्टेनो सी के लिए होता स्टेनोग्राफर सी या पीए पर्सनल असिस्टेंट, लाइक दैट। These are 2 file numbering systems prevalent in Government of India Ministry Department. One is conventional, one is functional. Urgency grading. Urgency grading, 3 type of urgency gradings are there. एक immediate है, एक priority है, priority। आपने गलती में देखा होगा, I am not refusing, most immediate भी लिख देते हैं। most immediate इसी में नहीं है, फिजिकल फाइल में हमने लिखते हैं कि बड़ा अर्जेंट है, मोस्ट इमीडिएट लिख दो उसका, लेकिन इमीडिएट है जो जल्दी करना है, प्रॉम्प्ट एक्शन है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी वाला है जो इट प्रीसीड्स अदर्स, इट इज प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी एक्सट्रीमली अर्जेंट। लोकसभा राज्यसभा के लिए अर्जेंसी ग्रेडिंग हम नहीं लगाते हैं, 100% ये अर्जेंट होता है, और इसमें फाइल कवर बदल जाता है। लोकसभा का ग्रीन कलर का रहता है, राज्यसभा का रेडिश कलर का, जैसे उनका कारपेट का कलर है उस टाइप का फाइल का कवर भी, अलग अलग फाइल कवर है। लोकसभा राज्यसभा फाइल उसमें लिखा जाता है, टॉप में प्रिंटेड है, इसके लिए हम अर्जेंसी ग्रेडिंग देना नहीं पड़ता, इट इज वेरी वेरी अर्जेंट इटसेल्फ। अर्जेंसी ग्रेडिंग कैन बी रिव्यूड बाय एनीबॉडी, सेक्शन ऑफिसर से लेके ऊपर तक कोई भी चेंज कर सकता है उसको, बोला ये कोई अर्जेंसी नहीं है बस इसको रखो, इमीडिएट हटा सकता है। लेटर का ऊपर भी आपने टाइप किया हुआ देखे होंगे, प्रायोरिटी, अर्जेंट, प्रायोरिटी सब लिखते हैं, लेकिन अर्जेंट भी नहीं है। देखिए नो ग्रेडिंग है, इमीडिएट, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी। हमारा लेटर में अर्जेंट भी मिलेगा, लिख देते हैं मिनिस्ट्री में, देयर इज नॉट देयर इन द बुक, बट ई ऑफिस में ये 4 है, इमीडिएट। ई ऑफिस में बटन होता है, ई ऑफिस में काम करने के बाद वो बटन को हम दबा देते हैं, वो आ जाता है। आउट टुडे भी है, वीआईपी करके लास्ट को है लोकसभा राज्यसभा के लिए, तो उसको देखते हुए कलर कोडिंग है उसमें, क्लिक करने से वो कलर उसमें आ जाता है, उस हिसाब से वो फाइल को जल्दी निकालते हैं, उसको पेंडिंग नहीं रखते। सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन है, टॉप सीक्रेट है, सबसे बड़ा सीक्रेट है, देन सीक्रेट उससे थोड़ा कम सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट से कम है ये। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल एंड रेस्ट्रिक्टेड। कॉन्फिडेंशियल जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए इसको, रेस्ट्रिक्टेड जो है थोड़ा सा कम और ग्रेडिंग इसका कम है, और ये 4 ग्रेडिंग है। लास्ट स्लाइड इज द लास्ट स्लाइड दिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट में हमारा 3 कैटेगरी का रिकॉर्ड है, ABC फिजिकल फाइल का कंडीशन में। ये जो फाइल है रेयर फाइल होता है, महात्मा गांधी का सिग्नेचर है, जवाहरलाल नेहरू का सिग्नेचर है, सुभाष चंद्र बोस का की फाइल है, लेट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, हर सारे टॉप लेवल का जो है, ये जो ए कैटेगरी फाइल है 25 साल तक डिपार्टमेंट में रहता है। फिर उसके बाद नेशनल आर्काइव्स जो है आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो साइड में बिल्डिंग में कृषि भवन में, वो नेशनल आर्काइव्स को भेज देते हैं 25 साल के बाद। कैटेगरी फाइल, बी कैटेगरी फाइल ये भी है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, इसको लोग रिक्वायरमेंट के लिए मांगेंगे नहीं, ए कैटेगरी को लोग मांग सकते हैं बार बार,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वॉल्यूम है, कैटेगरी में आएगा। बी कैटेगरी जो है हिस्टोरिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है, ये भी 25 साल तक डिपार्टमेंट में रहेगा, उसके बाद नेशनल आर्काइव्स को हम भेज देते। सी कैटेगरी द फाइल व्हाट वी आर हैंडलिंग, अपने ऑफिस में जितने फाइल आप हैंडल कर रहे हो वो सारे सी कैटेगरी फाइल है। आप बोलेंगे सर बी कैटेगरी फाइल कैसे होगा? सपोज आपने जीएसटी का फाइल है, तो आपने सपोज आपका कोई नॉर्थ कैंपस था, साउथ कैंपस बाद में बना, कौन सा बना मुझे पता नहीं है, जो कैंपस बाद में बना उसका एक फाइल खोला, उसमें सारे काम हुआ, न्यू कैंपस बन गया साउथ कैंपस, और वो बनने के बाद वो 25 साल तक वो फाइल रहेगा। 25 साल में क्या होगा, उसको आपने उसको पहले सी कैटेगरी फाइल था, सी कैटेगरी फाइल को मैक्सिमम 10 साल तक रख सकते हैं। 10 साल के बाद आपने उसको अपग्रेड कर दिया बी कैटेगरी में, बी कैटेगरी करके उसको 25 साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेन बिल्डिंग में आपने उसको रखा है। उसके बाद आपने देखा कि ये बड़ा ये फाइल है, उसको आपने नेशनल आर्काइव्स को भेज देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने सारे ऑल ओवर इंडिया का डॉक्यूमेंट है नेशनल आर्काइव्स का स्टोर है, उसको उन्होंने केमिकल वगैरह सब करके सेव करके रखते हैं, पेपर पेस्ट करके सब करके, बाहर से इम्पोर्टेड पेपर वगैरह लगाते हैं, वो है जैसे को तैसे रहता है। यू कैन विजिट एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई नेशनल आर्काइव्स को फ्री टाइम पे विजिट करके जाके चेक करके आ सकते हैं, दुनिया भर डॉक्यूमेंट उसमें है। तो ए कैटेगरी 25 साल तक रख सकते हैं, बी कैटेगरी 25 साल तक रख सकते हैं डिपार्टमेंट में, उसके बाद नेशनल आर्काइव्स को भेज देंगे। सी कैटेगरी फाइल जो है 10 साल तक मैक्सिमम है, उसको रखना है तो अपग्रेड करना पड़ेगा बी को, नहीं तो उसको फाड़ के फेंक सकते। सपोज जो छुट्टी का एप्लीकेशन है, ये दुनिया भर ऑर्डिनरी मैटर है, मैटर खत्म हो गया, एसएस फाइल सी कैटेगरी फाइल है। ई ऑफिस में 2 कैटेगरी फाइल है, ए एंड सी। बी कैटेगरी फाइल नहीं है क्योंकि बी कैटेगरी को स्कैन करने के लिए मना किया गया है, लेकिन जितने सारे फाइल जो है स्कैन करके ही अपलोड होता है, इसीलिए बी कैटेगरी को हटा दिया गया ई ऑफिस में। सारे ए कैटेगरी है, नहीं तो सी कैटेगरी। The concept. So in record management is a vast thing also. So these are all. Any question? Then we will take a break for 15 minutes. Yes, any question? Otherwise, thank you everybody. Question afternoon next class में पूछेंगे आने के बाद। सर एक क्वेश्चन है। Yes sir, पूछिए सर। पूछिए। Good afternoon, sir. I am Kailash Chand Meena, Assistant Registrar Establishment Non-Teaching from DU से। Okay sir. सर एक रिक्वेस्ट आई है मेरे पास में किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय की, Sir. और ही वांट टू चेंज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ हिज डॉटर आफ्टर रिटायरमेंट। Okay. Is it possible, sir, after retirement? Why he want to change the date of birth of his daughter? Sir, he has not mentioned any reason, but he has given some supporting documents like matriculation certificate, Aadhaar card and PAN card of his daughter. So you know that only one valid proof in Government of India is a matriculation certificate. Yes, sir. It is the valid proof. So if matriculation certificate is what is the date of birth written, that is the date of birth. Yeah. You can change. एंड ऑलरेडी जो मेंशन्ड है सर उसकी सर्विस बुक में वो डिफरेंट है, जो उसके 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट आप जो प्रोवाइड कराया उससे, तो क्या आप हम इस स्टेज पर अमेंड कर सकते हैं क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ को? फिर भी हम लोग को डाउट होता है तो हम क्या करेंगे, कंसर्न बोर्ड को, कंसर्न स्कूल को पूछ सकते हैं कि ये जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है सही है, जेन्युइन है या नहीं है, उनका रिकॉर्ड हम लेटर लिख के कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, बोर्ड सर्टिफिकेट में तो सही है सर जो उसने दिया है, बट हमारी जो सर्विस बुक में है वो पहले गलत मेंशन कर रखा है, उसको वो करेक्ट करवाना चाहता है। वी कैन चेंज, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको डाउट होगा तो हमने कंसर्न सीबीएसई, आईसीएसई जहाँ से है उनको पूछ के उधर बोर्ड से या उनका जहाँ स्कूल वगैरह है वेरीफाई कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं अभी जेन्युइन है, क्योंकि ये सर्विस मैटर है और उस हिसाब से सर्विस होगा, इसलिए हमने मना नहीं कर सकते।
और चेंज करने के लिए हमने डिले कर सकते हैं और उधर से हम व्यू ले सकते हैं कि सर्टिफिकेट अभी जो दिया हो जेन्युइन है या डुप्लीकेट है। ठीक है सर। सर बट हम उनसे जो एप्लीकेंट है जो एम्प्लॉय है उनसे भी तो पूछ सकते हैं ना कि रीजन आपने पहले वो क्यों दिया था और अब ये क्यों दे रहे हैं। गलती में लिख दिया बोल देगी गलती में लिख दिया करके कोई बोल बात सकते नहीं, बट फिर भी हम उनसे रीजन तो मांग ही सकते हैं ना सर। मांग सकते हैं, राइटिंग में मांग सकते हैं, राइटिंग में। फॉर अपडेशन ऑफ द फाइल इन फ्यूचर। जनरल बीके सिंह सर का ऐसे इशू था ना, जनरल बीके सिंह सर का। सर एग्रीड सर, बट सर्विस बुक में डेट ऑफ बर्थ था, बट आई थिंक दैट वाज नॉट चेंज्ड ना। यस, इसमें हमने कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको प्रूफ के लिए चेक कर सकते हैं। कंसर्न बोर्ड को लिख सकते हैं, कंसर्न यूनिवर्सिटी को, जहाँ से उन्होंने मेट्रिकुलेशन जहाँ से किया स्कूल को पूछ सकते हैं, उधर से हमने चेक कर सकते हैं फुल प्रूफ करने के लिए। और इनसे पूछने से वो तो बताएंगे कि गलती में लिख दिया, ऐसे कुछ बोल देंगे वो, है ना, कर सकते हैं। We can do and we have no reason to deny। हमारे पास रीजन कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Anything? Otherwise, we will take a short break, 15 minutes. सर एक क्वेश्चन है, Yes. जैसे आपने मिनिस्ट्री में कहा कि लेटर नाम से जाती है तो उसको कंसर्न पर्सन के ऑफिस में आप डिलीवर करते हैं। यदि मीन टाइम यदि वो उनकी ट्रांसफर हो जाती है और हम लेटर वहां पहुंचता है तो फिर क्या करते हैं? Excellent, ma'am. It is a pertinent question and very valid question. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने ये आपको बताया भी नहीं। जैसे कि बाय डेजिग्नेशन आता है, सपोज आपका रजिस्ट्रार का नाम पे चिट्ठी आया है, रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी चिट्ठी आया है, लेकिन जो रजिस्ट्रार था वो चले गए हैं उधर, उसको हमने टीयर करके ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन उनका नाम पे आया है और सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल विजिलेंस मैटर ऐसे कुछ आया है, हमने उसको ओपन नहीं करना है। कोर्ट समन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वारंटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। So if it is by name and that person has been transferred from that place, we cannot open that. It will be a legal problem. But by designation केवल आया है तो आपने ओपन फाड़ के देख सकते हैं। And लेकिन what to do if like the letter with name and the designation also, मतलब नेम भी है, डेजिग्नेशन है, ओपन करके देख सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये हमारा यूनिवर्सिटी है, हमारा इधर लेटर आया है, वो चले गए हैं, रिटायरमेंट ट्रांसफर कुछ भी हो गया है, बट वी कैन टियर एंड सी दैट वन। इफ हमारा नहीं है, हमने दोबारा एक लेटर बना के उसको पैक करके दोबारा उनका पास भेज देंगे स्पेशल मैसेंजर का साथ हाथ में। तो इट इज नॉट कि लीगल प्रॉब्लम हो जाएगा। We can do that. We have that authority because we are an organization, not an individual. Okay, thank you. Thank you. So if others have questions, maybe they can ask later when we resume. So sir, we can resume at 4:30. Is it okay with you? Yeah, ma'am. No issue. So, okay, sir. I wish we could serve you a cup of tea, but you're sitting so far away. Yeah, no, ma'am. I will have now here. All right. My house. Yeah. Thank then you. sir, we'll see you at 4:30, sir. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.